जितनी सेल्स इंस्टाग्राम स्टोरीज से आती है, यू हैव नो क्लू. पीपल मेक 100, 200K, 500K a month. Whatever niche you are in, if you don't know about content, you will not succeed. Saksham is the beast at building powerful personal brands, and he's the founder of Metro Media. With over 200,000+ followers across all platforms, he has built a really strong personal brand for himself. What is it that you offer as an agency? I want the copywriting to be exceptional. Disclose करूँ तो about 300 people unfollow me on a daily basis. Oftentimes agencies ये loop से नहीं निकल पाती है because their base level is bad. वो सस्ता काम करवाएंगे, सस्ते team members रखेंगे. They will not treat their work as projects. You have been trying to change your personal brand. If I'm stepping up the game now, how do I step up in terms of attracting a more niche audience? 90% of the courses are shit. There's this thing especially in India. लोग बहुत ज़्यादा कर्ज करते हैं उन लोगों को जो कोर्स बेच रहा है या कोई मेंटोर से बेच रहा है. It's very common to hate. What do you suggest is a good personal brand then? People who are connected to the person, tell good stories and show progression. I would like to start with your personal brand and the way you have been creating your content. And as you mentioned off the screen, off the records, ki you have been trying to change your personal brand. It was earlier थोड़ा एक different zone में. They were trying to change the zone. वो talk to me about that. वहाँ क्या हो रहा है? Okay, तो until about mid this year, the brand was more around कि okay मेरा journey कैसा है. It's still that. The topics were very scattered, you can say. हर किसी चीज़ से related होते थे. Whether it's fitness, mindset वगैरह कुछ भी है. Since I would say around August, I decided to take more of a niche approach. Because Why particularly that time? ऐसा कुछ नहीं है मतलब हाँ ठीक है. नॉर्मल था. बिकॉज अगेन वो एक एज अ क्रिएटर वो क्रिएटिव सेंसेस चलते रहने चाहिए ना. आई कुड डू दैट इन माई स्लीप जो पहले वाला कॉन्टेंट था. इसलिए ओके व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप आई कैन टेक हियर. एंड फिर आई थॉट कि ओके आई नो हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड इस तरीके के कॉन्टेंट से. काइंड ऑफ क्रिएटेड माई ओन स्पेस इन द सेंस ऑफ एडिटिंग कैसा रहता है या फिर मेरा प्रोडक्शन कैसा है. क्योंकि देयर इज अ सर्टेन वे आई डू माई वीडियोज. Okay. Saksham edit जैसे Alex Hermosi edit होता है Saksham edit. Because मेरे edits इतने ज़्यादा high level नहीं होते in terms of graphics वगैरह. But the amount of B-rolls that are used on average हर एक वीडियो में 50 B-roll यूज़ होते हैं, है ना. अभी जैसे एक वॉइस ओवर था उसमें हमने आई थिंक 85 B-rolls यूज़ किए थे, है ना. तो that's the amount of filming it requires मेरे लिए भी. All of that तो I know I can do that whenever I want. So the next thing was कि okay मैं काफ़ी बार हर चीज़ों को एक similar idea पे रखना चाहता हूँ. So one of the big idea that I'm creating with my agency as well as my own personal brand is I want the copywriting to be exceptional. Sure. Okay. So मेरे लिए level up was like कि okay how do I level up in terms of copy? How do I improve my scripting? And how do I make it niche? Was it because Alex Hermosi also talked about this कि pre-production is far more important than post-production. Heavy edits पे चले जाओगे कोई point नहीं है उसका because the message is not clear and at the longer run you will not be able to build your personal brand. Yeah. So pre-production is like 80%, 90% you can say. बाद वाला काम is the simpler part. पहले का जो planning होता है, the things you say, everything has to be targeted and it has to be thought of. तो मेरा था कि okay, if I'm stepping up the game now, how do I step up in terms of attracting a more niche audience? I'm okay with like stats अगर मैं थोड़ा सा disclose करूँ तो about 300 people unfollow me on a daily basis. ठीक है, 300 to 400 people, sometimes 500 and above people unfollow me. Versus how many follow you? Around like इससे double follower करते हैं तो 500 का average रहता है. हाँ, like growth ऊपर नीचे जाती है. There are days where I grow like 1,000 followers in a day, but then there are days where I grow 1 follower. Okay. तो मेरा वैसा भी रहता है बट आई डोंट लाइक आई एम नॉट अटैच्ड टू दैट नंबर बट आई जस्ट वांट द राइट पीपल ऑन माय प्रोफाइल. मेरा था कि ओके व्हाट आर द ब्रांड पिलर्स आई वांट. सो इट वाज देन मोर अराउंड पर्सनल ब्रांडिंग फर्स्ट, एजेंसी सेकंड एंड देन फिटनेस एंड लाइफस्टाइल थर्ड. दैट्स व्हाई इफ यू चेक द अमाउंट ऑफ कंटेंट फॉर ईच पिलर देयर विल बी अ डिफरेंट अमाउंट. जुजुत्सु फिटनेस रिलेटेड एक वीडियो रहेगा इन एवरी 10. एजेंसी के वीडियो ज़्यादा रहेंगे. क्या बहुत मतलब इंटेंशनल है कि आप टू हाँ, एवरीथिंग इज वेरी इंटेंशनल. सो राइट नाउ काइंड ऑफ पिलर्स जो अभी एजेंसी ब्रांड के जो बन गए हैं, दीज आर अराउंड पर्सनल ब्रांडिंग, एजेंसी, फ्रीलांसिंग एंड देन देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी जो मैं वॉइस ओवर्स के अंदर डालता हूँ. एंड देन दोज वॉइस ओवर्स आर एवरीथिंग अराउंड लाइफस्टाइल. अब वो लाइफस्टाइल वाली चीज़ें एजेंसी से भी रिलेटेड हो सकती है. तो कंटेंट पिलर्स क्या क्या हो गए? एक तो हो गया जिजित्सु, हाँ, फिटनेस, एजेंसी, पर्सनल ब्रांडिंग.
And the fourth, personal Life- branding में भी सब categories हैं. हाँ नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग इज मोर अराउंड जस्ट पर्सनल ब्रांडिंग. ठीक है. Lifestyle now- वगैरह किस में आता है फिर? लाइफस्टाइल इज लाइक फिटनेस के साथ में ही है वो. सो यू कैन मेक दोज 2 pillars, maybe 1 pillar, whatever you call it. अभी earlier I was approaching content through the frame of a content creator. Right now I treat everything as marketing. Why that shift? यार intention bro. Long term में Money was one of the reasons. कैन से, although तुमको दिखेगा नहीं कि मैं सेल्सी हूँ मेरी ब्रांड पे कभी भी. द लास्ट ब्रांड डील आई डिड वाज इन अगस्त एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं करना अब काम ब्रांड डील्स के साथ में. क्यों ऐसा? Not a good experience. I think if I'm vocal about it, only Decathlon was the brand deal that I enjoyed doing. Apart from it, everything felt forced and felt like कि okay, पैसा थोड़ा बहुत आ रहा है but मज़ा नहीं आ रहा ना उस चीज़ में, because वो पैसा आ जाएगा मैं खर्च कर दूंगा उसको. Like what's the long term game? Then what is your intent now with the content? Everything is related to, again, like I said, attracting the right audience. So I want people who are similar to who I was 3 years ago or 2 years ago. Go into that. So all the lifestyle content I create, it's targeted towards Saksham's lifestyle 2-3 years ago and what was he thinking, and then the changes that have happened in that time frame. मैं उन चीज़ों को address करता. Like I said, if I go back into the marketing angle, मैं बहुत easy रखता हूँ. Like I don't go too deep in terms of thinking because again वो execution slow कर देंगी. So I treat everything as a funnel and in terms of awareness. So if I am talking niche, मैं 2 segment में बात करूँगा. पहला वाला it's niche content, so niche में you can count agency, freelancing, personal branding. So I do some days or sometimes a week. Like it's very random, but I often see कि जो इन चीज़ों की audience है, what are their awareness levels and what are they facing at different levels. तो अगर तुम basic level पे break down करोगे तो unaware, problem aware, solution aware, most aware, इस type का audience होता है marketing में. So I break down problems at every level and I'm like कि okay, क्या मेरे को मेरी audience से feedback मिला है कि उनको इस type की दिक्कत आ रही है. And then I create content by treating that funnel कि मैं unaware audience के लिए थोड़ा ज़्यादा content बनाऊंगा. क्यों इसका reason? To get the followers in? Sure. Get the right people in, not the followers, right people. Sure. But So- now, this is the third time that you mentioned right people, right? I want to specifically understand what you mean by right people. See, who are aligned with me on pretty much everything. I have a certain view on With the goal that you have. not just goal but who I am. So I have a certain kind of an approach with my lifestyle. I spend big, right? मैं बहुत महीने like people will think कि मैं ज़्यादा spend कर रहा हूँ मेरे पे, but that's just who I am. तो वो चीज़ हो गई and then I'm very vocal about that I feel training combat sports or training sports in general is better for you as a person than going to the gym or working out. I'm more around performance. So there are opinions that I have and I'm a bit polarized around those. मैं कभी ये नहीं आके बोलूँगा कि एक दिन मैंने बोल दिया jujutsu is better. And this is all subjective, right? It's based around personal experience. So my whole agenda, and not even agenda, you can say मेरा जो पूरा kind of thinking है हर चीज़ के पीछे कि everything will be based around what I have experienced. You cannot argue with me उस चीज़ में क्योंकि मैंने experience करी है and मैं फिर ही बोल रहा हूँ उन चीज़ों को. मैं कोई चीज़ fabricate But what if करके I argue? Like, what would you do if I argue? I have done it, it's true for me. You say it might be true for you, I'm not going to argue back. But you can't say what I'm saying is false. And मैं उसको ego के तरीके से नहीं बोल रहा, it's just there's more substance in what I say if I've lived through something. So for example, अभी जब if we go back to the marketing side, so most of the content is created for the unaware audience. Unaware में funnels बड़ा होता है ऊपर, so you can get more people in. For unaware people, it could be more around simple mindset, how to get started, जो basic level पे issues आते हैं उनको. And then kind of categorizing कि as people go deep into the funnel, starting में वो लोग हैं जो may be interested है freelancing में, agency में, personal branding में, but as people go deeper, they are more intentional in terms of what they want to do. वहाँ पे फिर आता है कि okay, they are serious about creating video content. They are serious about being a high-paid freelancer. They are serious about maybe transitioning from being a freelancer to an agency owner. So even though I might not be 100% correct, I try to stay correct majority of the times. And मैं marketing के angle से break down करता हूँ and that decides the volume of content that I have. फिर उसके साथ में Tanjay who helps me with marketing and pretty much everything that I do.
he was doing some breakdowns around content, and we saw that there's a certain way in which, like, awareness levels के हिसाब से you present your content in different ways. कोई अगर unaware है, you give them a story. कोई अगर ज़्यादा aware है, you give them maybe a bold proclamation, right? You maybe go polarized. And then that's how we have defined our ways in terms of creating content. इस ब्रैकेट में ये सब हाँ. रहेगा, इस ब्रैकेट में. हाँ, so What is the that's split? again like very dynamic. If I want to go more surface level, so a big case study was when I did this series called Solving the Skill Issue. क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों के DMs आ रहे थे कि bro don't know what skill to learn. So I was like gamer term डालते हैं, if you like तुम लोग gamer में भी रहे होगे तो skill issue बहुत बड़ा वो term रहता है gaming के अंदर. So I was like okay, let's create a series around solving the skill issue. Every single hook was targeted towards more people. That's why pretty much every single video in that series went over 100K. एक वीडियो जो सिर्फ जुजुत्सु के बारे में था, that video did not do as well. First video crossed like 700K views. 2 videos I think 200K क्रॉस किए, 100K क्रॉस किया out of 6. ठीक है, तो it's like marketing वाले basis पे काम कर रही हैं चीज़ें. Because there's this book I was reading, बहुत time हो गया, I haven't read it fully. It's called The Prince by Machiavelli. So it's around Italian mafia etc. तो उसमें एक काफ़ी बड़ी चीज़ मेंशन की गई थी कि it's simpler to kind of move the masses than you think. तो मैं उस अप्रोच से हमेशा जाता हूँ कि okay, if I have some breakdowns around what I want to do in terms of marketing with my content, I can pretty much predict what I will get out of it. तो मैंने ये solving the skill issue किया था when I was stuck at around 120K followers. I grew to 135K just with that series. एक वीडियो से 15,000 फॉलोअर आए थे. ओके, देन आई टुक दैट एज डेटा एंड आई वाज लाइक ओके, अब थोड़ी इंटेंशनल ऑडियंस है, दीज पीपल माइट थिंक ऑफ मी एज समवन जो मे बी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता है. नाउ आई विल गो डीप इनटू द सीरीज साइड ऑफ थिंग्स. यू आर डूइंग अ सीरीज एज वेल. पर अब मैं जाऊँगा एजेंसी और फ्रीलांसिंग में. फ्रीलांसिंग का पहला वीडियो किया सीरीज वाला, क्रॉस 200K. ओके, तो उस तरीके से आई हैव डन इट अगेन एंड अगेन. एंड मैं मार्केटिंग के एंगल से बहुत रखता हूँ हर चीज़ों को. सो उस तरीके से आई क्रिएट अ स्प्लिट. सो दिस इज द नीश कॉन्टेंट स्टेप, लाइक पार्ट 1. एंड देन लाइफ स्टाइल इज एवरीथिंग अराउंड हु आई एम एज अ ह्यूमन. तो मैं अगर बर्नआउट की बात कर रहा हूँ, मैं अगर फिटनेस की बात कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग मनी, एनी ऑफ इट, दैट्स मी एज अ पर्सन असाइड फ्रॉम वर्क. दैट्स देन मेंट टूवर्ड्स द लाइफ स्टाइल साइड ऑफ थिंग्स. क्योंकि लाइफ स्टाइल में ज़्यादा ब्रॉडर ऑडियंस आती है, एंड दैट्स मी एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू मोर पीपल. सो दैट्स हाउ द फनल वर्क्स राइट नाउ. एंड this funnel actually does really well in attracting a niche audience. When you bring in the people, I think ki specifically for growing the followers, you're doing massy content, right? You can't call that massy yet. Okay. But your initial, the way you were approaching this as a content creator, because as a starting content creator, it went massy. Yeah. A Then lot of you times, yes. specifically niche down ki मेरे को right लोग चाहिए on the plate, because Correct. at the end of the day, if I were to sell, इनकी कैप क्या है, हाउ मच कैन दे स्पेंड, ब्रिंग आउट ऑफ द वॉलेट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाता है. एंड दैट्स हाउ यू हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड कि मेरे को इस तरीके से अप्रोच करना है इस चीज़, राइट? बिकॉज आई डोंट वांट, देयर इज दिस थिंग स्पेशली इन इंडिया कि लोग बहुत ज़्यादा कर्ज करते हैं उन लोगों को जो कोर्स बेच रहा है या कोई मेंटोर से बेच रहा है. इट्स वेरी कॉमन टू हेट, है ना? डिड यू नेवर हेट? हाँ, डिड यू नेवर हेट दीज गाइज? एज इन लाइक मैं उन लोगों को हेट करता हूँ. मतलब कभी ऐसा हैव यू कम अप फ्रेंड की कोर्सेज सेल करना बिफोर दैट? मतलब क्योंकि हेट I'm a big जेन्युइन है. advocate for courses, bro. I will never say a single bad thing about courses. I know 90. Is it because you have started ECB? ऐसा कुछ है? Not that, because a course is what got me into this online world. Sure. Okay. Okay, मेरे को नहीं आइडिया था. But 90% of the courses are shit, bro. Yeah, correct, 100%. But if you invest in the right courses, will change your life 100%. But for you to invest in the right courses, you have to go through the wrong courses as well. I would say otherwise. तुमको अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ना, you can pick out the right people. बट शुरू में नहीं होता ना यार. Again, वो गैम्बल होती है स्टार्टिंग में. I took the right course the first time, but then I got finished out of 1.5 lakh. है ना? मैंने उसके बाद में एक 2.5K के कोर्स में इन्वेस्ट किया था, जिसमें भी essentially got scammed because the whole you can say value prop of the course was changed after we enrolled. And then everyone demanded 2.5K का पूरा रिटर्न. I only got 1.25 का रिटर्न. उसमें से 1.25K USD मेरे को वापस आ गया था. But then I lost out on all the money जो मेरे पापा को पता भी नहीं है कि मैंने कहाँ खर्च की थी वो, क्योंकि मैंने उन्हीं से लिया था. So I've been on the bad side of courses as well.
इट्स जस्ट दैट कि मैं कोर्स का एडवोकेट इसलिए रहता हूँ बिकॉज इफ समवन हैज़ द राइट इंटेंशंस, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है कोर्सेज से. दैट्स वाई आई थिंक every single year I've spent upwards of 10,000 12,000 USD on courses since then. मेरे को कोर्सेज में ही ब्रेक इवन मेरी इनकम से करने में 2.5 साल लग गया था. सिंस आई स्टार्टेड आई वॉज बाइंग एवरीथिंग. इस साल भी मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया कोर्सेज में. विथ ECB भाई, you mentioned कि there are two things that you're catering. एक तो to build a personal brand and to monetize that brand. ठीक है, I would want to talk about the latter part of it, जिसमें कि you monetizing your personal brand and how to do that. ठीक है, उसमें what do you think are the pillars to maybe monetize your thing? So it depends on again what's the intention with your brand. Sure. If Let's you have, talk about somebody. Let's talk about a 16-year-old Saksham. ठीक है, not in the same scenario, but coming from a 2-tier city, is hopeless about what he's doing. Yep. Trying to build his personal brand, not has a lot of stories, just like you have right now. ठीक है, तो एक वो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि स्टोरीज ही नहीं है, मैं साला सुनाऊं क्या. yep. ठीक है, तो that want to start an agency. How does he approach it? So it's around intention. What you said was a big intention. That guy cannot sell his own product. He does not have the experience, but he can start his Instagram journey by being a freelancer. So he can help other people do XYZ. So you And talk said about 16-year-old Saksham. I'll take the use case of 2020 Saksham. I think I was 21 back then. Okay. Guy had no experience. He only knew pretty much anything from the courses that he got. वहाँ पे let's say you are at this level, you don't know what you want to do, but तुमने थोड़ा बहुत decide किया कि okay, maybe I want to do video editing, maybe I want to do copywriting, etc. You start uploading some basic content around that. You keep things borderline professional. एक जो beginners में काफ़ी गलत stigma रहता है, they overrate the work they do themselves. उनका जो बकवास सा कंटेंट डालेंगे वो उसको बोलेंगे भाई बहुत अच्छा है, एंड आई एम लाइक नहीं अच्छा तू वापस देख. इट्स जस्ट यू सेइंग कि भाई मैंने खुद ने बनाया है इसलिए अच्छा है. बट अगेन यू हैव डिसेंट स्टैंडर्ड्स. इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह के बारे में. बट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर एक्सपर्टीज एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टफ दैट यू आर डूइंग इन रियल टाइम. The way you started out, ठीक है, हाँ, you तो didn't have a lot of experience. कुछ भी नहीं. Story चल रही है बस. हाँ, मैंने एडिटिंग सीखी एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एडिट वीडियोज माई सेल्फ. एंड मैं खुद ही बुक्स के बारे में बात करता था. मैं लोगों को समझाता व्हाट इज USP इन बिजनेस एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें. वो कंटेंट अभी आर्काइव्ड है हर कहीं पे. दैट वाज लॉन्ग हेयर सक्षम. तो वो सब चीज़ें थी. एंड देन वंस यू हैव लेट्स से अराउंड 15-20 वीडियोज जहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हारा एक्सपर्टीज दिखा है. इफ इट्स कॉपी राइटिंग, यू हैव रिटन गुड कैरोसेल्स, यू मे बी हैव अपलोडेड B-roll ट्रेंड्स जो अच्छा कॉपी पे बेस्ड है. एंड अगेन कॉपी का भी इंटेंशन होता है. यू टेक फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने कभी उन ब्रांड्स को मॉनिटर किया है जो जिनके पास में एक्सपेंसिव कार्स या एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं. द B-roll ट्रेंड्स दैट दोज गाइज अपलोड, उनका कॉपी इतना रिलेटेबल और फनी होता है. दैट्स द रीजन ऑल ऑफ दोज वीडियोज गो वायरल. Give me an example. आई मीन मेरे पास ऐसे लाइक ब्रांड का एग्जाम्पल नहीं है, बट आई फॉलो लाइक अराउंड 100 पेजेस. कोई एक आध एग्जांपल तो पेजेस की जिनको यू फॉलो. यार आई कांट रिमेंबर द गाइज नेम. दैट्स दिस गाय जिसके पास में एक छोटा सा डॉग है. ही हैज़ लाइक अ कपल सुपर बाइक्स एंड उसके पास में 2 कार्स हैं. एंड ही डज इनसेन एडिट्स डांसिंग विद हिज डॉग, उसके बाइक का शोकेस करना और वो सब. एंड देन ही प्लेज अराउंड विद कॉपी. ठीक है, बहुत अंट कॉपी लिखेंगे ब्रो वहाँ पे. ब्रेन रॉट कॉपी लिखेंगे या फिर मीम वाले टाइप का कॉपी लिखेंगे. राइट, उस टाइप की चीज़ें लिखेंगे. जैसे देयर इज दिस ट्रेंड दैट गोज ऑन जहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ होता है कि गर्ल्स आर्ग्यूइंग विद ईच अदर आफ्टर वेयरिंग द सेम ड्रेस एंड मी एंड ब्रो का दोनों का सेम कार है. ओके, तो इस टाइप के कंटेंट को दीज गाइज डू इट इनक्रेडिबली वेल. दैट्स अच्छा, like playing on that, copy. You are also trying to find editors now who can make copies for you, जो कि हाँ. That's still something that we are working on. Editors who know copywriting is a big scarcity in the market. So if you are a copywriter, you do stuff like that. क्योंकि in the beginning you have to understand one thing. तुमने अगर एक चीज़ पे सोच लिया कि okay, I'm an editor, only doing editing will get you nowhere. Yeah, I just wanted to talk about skill stack. Yes. So stack your skills, right? तो अगर तुम जैसे इंस्टा पे आना चाहते हो, whatever niche you are in, if you don't know about content, you will not succeed. तो तुम अगर एज अ कॉपीराइटर, एज एन एडिटर, तुम एज अ डिजाइनर कुछ भी आ रहे हो, you have to live and breathe your expertise, but through the ways that Instagram likes it. What I mean कि तुम ट्रेंड्स कर रहे हो, तुम एडिट्स करके दिखा रहे हो, you are hopping on ongoing trends.
maybe you are creating a trend of your own, etc. That shows expertise in terms of presentation. There's a reason why, for example, if we take a parallel, majority of the higher experienced guys जिनके पास में बहुत wisdom है 50-60 साल के होते हैं, none of those guys have big brands on YouTube or Instagram because they treat everything as if कि हम बोल देंगे और लोग आ जाएंगे हमको देखने के लिए. But there is a certain type of presentation that's required. So you stack presentation on top of your skill. Once you can present your skill through content, that becomes a good landing page. And then for that 21-year-old Saksham, the next step in terms of monetization is reaching out to people. He does not have the expertise to tell people that come to me. He will reach out to people. He has no ego in terms of I should be getting paid XYZ because I see people on the internet getting paid that amount. Do free work. Start putting out goodwill. Yeah, people are a lot against free work. Yeah. Do free work. Like, free work will change your life because that's where you start putting out good karma on the internet. I believe in this. I told you one story off camera as well. You give out free good karma, you will receive it back sometime. So for example, 21-year-old Saksham, he started giving out 14-day free trials to video editing clients who are fitness trainers, etc. And then on the 10th day or on the 11th day of the free trial, converted 2 people who wanted to pay him. Not a big amount, like $200 to $250 a month, but that's still something. For a beginner starting out, Yeah. it's very much. Huh? Yeah. शुरुआत के लिए तो जिसके पास कुछ नहीं आ रहा उसके लिए तो हाँ. $250. But to get that, I had to offer 5 free trials जिसमें से 3 लोगों ने कुछ नहीं किया. People ghosted me after 15 days of service. There was this one lady, European. She only gave me a very basic return testimonial and did not hold her end of the bargain. And she ghosted. So I had to go through that experience as well to get the 2 clients who paid me well. Through those 2 clients, it grew to 5. And that's when I would say that was the peak of my freelancing career. I was not a high paid freelancer, but that's when I wanted to transition into sales. So this is the pathway. If you want to get started on Instagram and monetize, and you do not have an expertise yet, you learn that expertise as you go, create content around that, understand the platform and what works on that platform, learn how to present good content, kind of step away from all the brain rot and become a big observer of what type of content works. There's a reason that content works like that way, right? Chill But guy to wala get meme, there also, it's very hard ना कि पता के चलना. creator ka mindset. Everything that these guys are creating, I can create it as well for myself. Chill guy wala jo meme aaya tha, everyone did it. The ones who are good adopters did it. ठीक है. This is a skill that takes time. I also wanted to talk to you about one of the deadliest spot to be in when it comes to personal brand is identity lacks reality वाला हिसाब कि followers इतना बढ़ गया है. मतलब you are reaching 160, 170, 180 के followers in a span of 2-3 रील फटी है और तुम 160 के 170 के followers पे आ गए हो. ठीक है. And on the other hand, you being on the side जिसने धीरे 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 ग्रो करके वहाँ पहुँचा है. एक तरीके से when somebody looks it from the outside, from the zoom out, उनको लगेगा दोनों के same followers है. But there's a huge difference between their personal brands. Talk to me about that. Connection. People who are following you, they need to have a connection with you. Sure, you can grow big and you will have the numbers, all of it. You will get people preaching you. तुम्हारी लाइफ में पहली बार तुमको इतना पॉजिटिव वैलिडेशन मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा. बट देन यू नीड पीपल दैट विल स्टिक. इफ पीपल आर नॉट स्टिकिंग विथ यू and they're only there just because you are creating content that regularly goes viral, so there is no longevity in that brand. It's just that कि ये एक बड़ा ग्रुप आ गया यहाँ पे, फिर एक दूसरा बड़ा ग्रुप आ गया, फिर एक तीसरा बड़ा ग्रुप आ गया. To retain those people, you have to create intentional content, which is again the thing that you said. For me, I have a very clear pathway around how to get to 200K, 300K. You can go there in 2 months. Easy. But I don't want to do it. That's Like an intentional decision that you have to it's just the personal choice that would Saksham from 6 months ahead, 2 years ahead, be proud of this content? If the answer is no, I'm not going to make it. Sure. Because it's easy to be like, bro, वहाँ पे वो book पढ़ी, उसका quote ये रहा, है ना? मैंने ये quote सीखा था, like उसका ये ले,
version. बट वो जो रीड बुक वाले होते हैं, बुक रीड वाले जो पेजेस होते हैं, ठीक है, उनका भी तो है. I mean, that's their brand. I'm not saying it's wrong, but That's their way of doing it. yep, if it's a book brand, do it properly. But And there are then people who define do it. personal brand, because एक तरीके से when somebody is going that route as well, it is a personal brand in some sense. ठीक है. What do you suggest is a good personal brand then? People who are connected to the person, Sure. right? And those people are like, okay, I trust this guy. And give me 5 steps to like do that properly. Tell good stories and show progression. Oftentimes, where people go wrong is they either start to get too disconnected from the audience. So they'll just show कि मेरा lifestyle ये है, मैंने ये उखाड़ लिया वगैरह. People will be like show off कर रहा है. Okay, connection break होता है. If you have a friend जो constantly तुम लोग जब पार्टी में गए हो तुमको बताता है ब्रो मैंने इतना पैसा कमाया, you will be like कि भाई तू उधर रहे मेरे से क्यों बात बोल मत रहा कर. है भाई ये सब? हाँ क्या कर रहा है बार बार. If you have a friend जो पूरे टाइम रोता रहता है, you will like कि साले रोना बंद करना क्या कर रहा है. That's again a parallel. If you keep on talking about how hard your life is or how hard life is for a certain group of people, they will come. ब्रांड दोनों केस में बन जाएगी. एक साइड में लोग मोटिवेशन देख के आएंगे, एक साइड में लोग रिलेटेबिलिटी देख के आएंगे. बट देन अगेन दैट्स नॉट like a proper intention. So if you want to build a brand, define what are the 3-4 things that you want to be known for in the long term. Again, it does not have to be very concrete. I'm not saying that कि तुम ऐसा अपना set in stone वाली चीज़ कर लो कि 10 साल बाद में जब मेरा ब्रांड होगा वो इन्हीं चीज़ों के बारे में होगा. Not like that. You stay focused on what you want to achieve a year from now, 2 years from now. And then define, okay, these are the 2-3 things that I want to be known for. In my case, when I started the brand again in like 22 के end में, I think it's been right up almost 2 years since I started. I want to be known for documentation in terms of how I share my stories, and then me being on this journey of jujutsu, running my agency, etc. I just wanted to be known for that. I had no other clue कि मेरे को brand क्या बनानी है. I only had one intention that if I get 10,000 followers, I'll be able to get clients for the agency. But then I was sitting at 30K in January. And उसके बाद मैं I was like, fuck भाई एक नई full time job बन गई मेरी. Because now I have to treat this. क्योंकि मैंने नहीं किया, I'll just be another guy जो लोगों के 2 बार feed में आया and he disappeared. तो then it became another job कि, okay, what's the next step? You start showing up with more authority and you start leveling up. You define your level ups. One of the things that I often tell my content creators inside my team is that, okay, if I am giving you a reason around why something works in terms of personal branding, that's my breakdown. Based on the experience I have, that's my bias. Every breakdown is a good breakdown. If both of us are presented a personal brand right now, you will give 10 reasons, I will give 10. 5 of them might be common, but 5 will be unique to you and unique to me. Doesn't mean that you are wrong or either I am wrong. Okay, so that's how you need to break down your own way. And then you need to define what's the next step. Let's say you start doing good with one type of content. You now have to define, okay, if I were to improve this now, and step 2, how do I improve this? You pick one direction. I will improve in production. I will improve in writing. I will improve in topics. I might improve in presentation. Any of it. Just pick one. You improve that. While you are doing it, you will learn everything that is required to get there. If you are improving on production, you will learn how to edit better. You will learn how to present better. You will learn how to write better, because if you have those standards, बाकी चीज़ों में standard कम नहीं रहेगा. That's how you get to, I would say, level 2. After that, it becomes more of a journey in the present. I am not at the point where I can say that I have seen the world in terms of personal branding, but with the experience I have, I am at a point where I can decide my direction for the next 6 to 12 months. So even I would not say 5 steps. I am at step 3 myself. Step 3 for me is, okay, what is it that I want to create an impact on in the next 3 to 5 years? For me, I have picked the personal branding side on Instagram and my way of fitness. So that's preaching about combat sports in general. So that's my direction. So every personal brand then has parallels. You will have the first amount of content pieces that don't do that well. Then you will be at a level where once you start to improve, you will have content pieces that will get you
good amount of audience, you will build some network within the space. Then you will start to do that on command. Good content creators can get numbers on command whenever they want. That's the marketer inside them. But that takes time for you to understand. Na? Being a good content creator is also a skill to have. Correct. ठीक है, especially at the age that we are now. और 10 साल में और relevance जितनी ज़्यादा हो जाएगी content की, it is the next big thing. Bro, two of the things and which are biggest problems with content creators is consistency and platform. ठीक है, people are very confused about how do I choose a right platform for my personal brand. Again, depends on the intention कि तुमको कैसा बनाना है. And the consistency part, that is very important. और बहुत लोग का बहुत polar takes है सबके consistency पे भी लेके. What is your take on consistency with personal brands? So should I answer the platform one first? Go ahead. Which one, whichever one you want. Platform का scene bro वही है कि every platform has its way of rewarding you and every platform has its way of content. Sure. सब अडेप्ट करते रहते हैं, क्रॉस अडेप्ट करते हैं. इंस्टा को तुम शॉर्ट फॉर्म रील्स में नहीं बीट कर सकते. लिंक्डइन को तुम अथॉरिटी वाले रिटन कंटेंट में नहीं बीट कर सकते. ट्विटर पे सेम न्यूज़ वाला टाइप का कंटेंट तुम उसको वहाँ बीट नहीं कर सकते. यूट्यूब पे तुम लॉन्ग फॉर्म बीट नहीं कर सकते. सो यू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू क्रिएट एंड यू गो डीप इन दैट. और फिर तुम प्लेटफॉर्म को स्टैक करो अगेन. इफ़ यू आर अ राइटर एंड यू डोंट वांट टू शो योर फेस, पिक लिंक्डइन और ट्विटर एंड स्टार्ट. तुम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो. बी-रोल ट्रेंड्स बनाओ, चेहरा दिखाने को कौन बोल रहा है. ओके, खुद की वीडियोस पीछे से रिकॉर्ड करो. कोई नहीं देखना चाहता चेहरा तुम्हारा अभी उस पॉइंट पे, मत दिखाओ. सो यू पिक प्लेटफॉर्म्स दैट वे, पिक प्लेटफॉर्म्स टू योर काइंड ऑफ एडवांटेजेस. I picked Insta because I had the experience since day one Insta में. And then when it comes to talking about consistency based on the experience that I have had, one of the biggest factors behind it is self-control. उसका पूरा मतलब ये है कि you define strict boundaries with yourself. Creating a video every day is not something that people can do. And you have to be okay with it. So you experience enough in this journey that you know what consistency is for you. मेरे लिए consistency on my brand is, let's say, uploading 25 videos a month. It does not mean that I will create 25 days a month. You'll batch them. I will ideate for 10 days, I will produce for 2, and then I'll be sorted for the remaining 18 days because मैंने उतना बना लिया है. So consistency for me is having one big ideation block or 2 ideation blocks every week, and then having one filming session every 2 weeks. And that's ideation in terms of researching topics. How does the system look like with content creation? As in, Like, how do you produce being consistently with the same level and with the same standards that you maintain? हाँ, तो again it's batching and then being focused. तो again self control वाली बात है ना. I'm not, इसमें तो बात क्या होती है कि it can get in your head एंड ये तुमको पॉजिटिव साइड में लेके जा सकता है, बुरी साइड में. व्हाट आई मीन इज कि तुमने अगर डिफाइन कर लिया कि ओके आई कैन क्रिएट 25 वीडियोज अ मंथ, तुमसे किसी टाइम पे फिजिकली तुम 20 ही बना पाए, यू विल देन लोअर योर सेल्फ इमेज उस तरीके से. सो इट्स बीइंग ओके विद इट एंड बीइंग फ्लेक्सिबल. सेम विद टू डू लिस्ट ना. 4 ही टिक कर पा रहे हो, 5 ही टिक कर पा रहे हो, 3 छूटेंगे. 4 अग्रीमेंट्स वाली किताब पढ़ना, लाइक इट्स वेरी क्लियर इन दैट बुक. इट्स लाइक डू योर बेस्ट एंड डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली. तो वो वाला चीज़ है. फर्स्टली इट्स दैट, एंड देन बैच को तुम ट्रीट करो. कंट्रोल वाली बात यहाँ पे आती है कि यू नो दैट यू विल फ्लिप अ स्विच एंड यू विल गेट द आउटपुट डन. सो बीइंग फोकस्ड in terms of the long term approach. Let's say if I want to get a month ahead in my content, I'll create strict boundaries. मेरे लिए शेड्यूल को लेके एक बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन होता है that I schedule my work around my personal life. I do not schedule my personal life around my work. Okay. Sure. तो मैंने अगर ये शेड्यूल कर लिया कि ओके आई एम ट्रेनिंग XYZ टाइम ऑफ द वीक, ये मेरे फोकस ब्लॉक है, इस टाइम पे कॉल्स है, सो आई विल हैव वेरी स्ट्रिक्ट ब्लॉक्स एंड मैं क्लाइंट्स को मना कर दूंगा, टीम्स को मना कर दूंगा, मैं हर किसी को मना कर दूंगा कि इस टाइम में डोंट बॉदर मी एट ऑल फॉर द कंटेंट. हाँ, आई एम वर्किंग ऑन कंटेंट, यू शुड नो दिस, आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनीथिंग एल्स. स्ट्रिक्ट बाउंड्री, create a focused goal, and then always ideate in advance. What I mean is कि जैसे अगर I recorded a batch of 14 videos before I came to this trip, तो मैंने वो 14 videos के लिए पहले around 30 videos ideate करके रखे थे. हाँ. That okay, these are borderline the ideas that I want.
So if I have a 5-hour block every week in terms of ideating content, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पहले के 2 घंटे में ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. पहला विन क्या होता है कि यू हैव इनफ टॉपिक्स. सेकेंड विन क्या होता है कि यू सेलेक्ट इनफ टॉपिक्स दैट यू वांट. थर्ड विन क्या होती है कि यू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर एवरी टॉपिक. मेरा रहता है कि आई नीड टू मैक्सिमाइज ऑल 3. So if I have 30 videos in my scripting wala part, I'll be like, okay, this is a good enough number. Self-control, I do not want to look at any idea apart from these. फिर मैं उन 30 वीडियो में से सेलेक्ट करूंगा कि okay, these are the 15 that I want to do next. These are just topics. ये topics. Just topics at this. कभी scripting नहीं हुई है. कुछ नहीं हुआ है. I have the topics, I have the inspiration. Then I start scripting them. And I script batch-wise based on the video format. I script all the voiceovers at once and then I script all the A-roll videos at once. क्योंकि scripting के time पे I have to plan the shots as well. Sure. So if it's B-roll voiceover, तो you have a Notion doc for this. yep, I have the Notion process. When you're पूरा वहाँ पे. scripting तो तू साइड में B-rolls लिखता जाता है कि इसके लिए ये B-roll. हाँ. And then वो एडिटर के लिए नोट रहता है. तो मैं अमन के लिए नोट लिखता रहता हूँ कि यहाँ पे ये B-roll रहेगी, यहाँ B-roll ये रहेगी. And those are some of the B-rolls that I know कि मैंने अभी तक नहीं लिए हैं. So I write all the scripts. I give it to Aman and मैं अमन को बोलता हूँ कि ब्रो अब बता मेरे को क्या क्या B-roll बनानी है. Then voice over के लिए अमन मेरे को एक B-roll का लिस्ट देता है. मतलब एडिट के बाद you make B-rolls? स्क्रिप्टिंग के बाद में मैं स्क्रिप्टिंग के बाद में एडिटर अमन को भेजता हूँ कि भाई ये एडिट है. स्क्रिप्ट ही भेज देते हैं हमें. हाँ, अमन को पूरा नोशन का एक्सेस है मेरा. समझ गया मैं. तो वो स्क्रिप्ट जैसी हुई वो देखता है पहले. हाँ, वो देखता है कि इसका वॉइस ओवर बनाना है. He'll kind of start ideating the अच्छा edit himself. Your editor is not just an editor. हाँ. He has a skill stacked in a way कि अब वो उसको कंटेंट और अमन वायरलिटी से बेटर मेरा कोई एडिट नहीं करेगा. ऐसा है. वैभव भी है who edits a lot of the content on Metro Media House. He does insanely good edits as well. But अमन वाला टच मेरे एडिट में कोई नहीं ला सकता. तो क्योंकि उसको वायरलिटी और उसको वीडियो not कैसी just फ्लो होना virality, चाहिए. he understands what I create. Sure. तो वो मेरे को बताता सक्षम भाई ये 20 B-roll बनाने हैं. I have a separate B-roll block. तो when you're scripting, you don't decide the B-rolls. When you script and send him, he decides the B-roll for you. वो क्रॉस चेक करता है. समझ गया. हाँ. कभी यहाँ कभी पे डल एडिट्स सकती है. में सी एवरी एडिट इज आइडिएटेड फर्स्ट बाय मी. मेरे को पहले मालूम होता है कि एडिट कैसा दिखने वाला है. मैं अमन को बोलता हूँ कि इस टाइप का चाहिए एंड एट दिस पॉइंट ही अंडरस्टैंड्स मी. तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होती उसको. आई जस्ट हैव टू टेल हिम अमन ये ए रोल है, ये ऐसा जाना है, ये बी रोल वॉइस ओवर है, ऐसा जाना है. दैट्स इट. अभी तो लेट्स ब्रेक डाउन दिस 30 कंटेंट का आइडियाज यू हैव. हाँ उससे ज्यादा यू डोंट आइडिएट इटसेल्फ. ठीक है कि मैं फिर वो कंफ्यूज होता रहूंगा. फिर ये तो एंडलेस साइकिल है. हाँ 30 कंटेंट का आइडिया आइडिएट किया. 15 सेलेक्ट किए. लेट्स से 7-8 मैंने. और ये 15 कितने दिन का कंटेंट है? इफ आई एम अपलोडिंग 5 to 6 times a week, that's 2.5 weeks. ठीक है. तो मतलब अराउंड 15 में पकड़ लेते हो, एक महीना ही पकड़ लेते एवरी ऑल्टरनेट डे अगर पकड़ के चल. अब दिस इज वेयर आई अगेन एक प्रॉब्लम ये आती है कि इतना एरोल कंटेंट बनाना इज डिफिकल्ट. ये सब सेटअप करो, कैमरा में देख के बोलो, नहीं होता है टाइम. किसी दिन तुम नहा के भी निकलो, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है. सो देन दैट्स वेयर बी रोल वॉइस ओवर्स आर माई सेवियर्स. वॉइस ओवर्स को मैं आज स्क्रिप्ट करूंगा, मेरे को रात को फ्री टाइम मिला है, मैं 5 वॉइस ओवर लिख दूंगा, हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करके भेज दूंगा अमन को. दैट्स एन एक्स्ट्रा बफर टाइम ऑफ 5 days. क्रेजी. फिर मैं 15 ए रोल, मैं ऐसे ए रोल्स आइडिएट करता हूँ कि ओके अब अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ तो ए रोल्स अच्छे दिखने चाहिए. जैसे अभी मैं जो 15 बैच का वीडियो फिल्म करके आया था, आई डेंट लाइक मोस्ट कि कैसा वो फिल्म हुआ है. तो मैं प्रॉबेबली क्या करूँगा, अमन को बोलूँगा 2-3 ही ले, बाकी सारे रीशूट करता हूँ मैं घर आके. तब तक वो बफर टाइम है को हाँ. 3 जब तक अपलोड होगा. क्योंकि इतना मैं बफर बना के आया हूँ पहले से ही. बट तो भाई वो 3 दिन के लिए इफ यू आर हियर तो यू डोंट नीड टू शूट दैट. बट इफ यू आर सिटिंग तो तू कर ले रहा है शूट. हाँ कि मैं बैठा ही हूँ तो कर लेते हैं, वरना हाँ. अच्छा निकल गया तो फिर पूरा कर लेंगे, वरना. So that's where if you talk about the journey, for the first about year and a half, consistency with content and with the agency was very difficult. I could either focus on just content or just the agency. So that's why I often had breaks. Last year मेरे को कभी कभी सोच के इतना बुरा लगता है कि यार लास्ट ईयर ऐसे मंथ्स थे where I uploaded 3 times in the entire month. ये 2023 की बात कर. हाँ 23 में ब्रो मैं इतना बर्न आउट हो गया था. But it was never about the burnout. It was more about a system and clarity. Since I started going heavy with content again since June, मेरा volume बहुत consistent रहा है content का. And एक भी break नहीं आया है. What do you think is the reason? इसका रीजन ये है कि तुम्हारे पर लैग टाइम इतना होता है कि तुम 1 महीना आगे चल रहे हो. जैसे अभी के लिए if I talk about you, तो जनवरी का कंटेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. Almost सॉर्टेड. अभी सॉर्ट कर दूंगा मैं 10 दिन में. तो मतलब दिसंबर में जनवरी कंटेंट इज सॉर्टेड.
That's the key to being consistent with content. अगेन वो हर कोई नहीं कर सकता. ओके वो विद एक्सपीरियंस आता है वो बहुत सा, क्योंकि आइडियाज भी आना इज ऑल्सो स्किल कि सही आइडियाज कौन से हैं. करेक्ट. तो when I say that content has to be treated like a full-time job if you're doing it seriously, last year it was 3 filming sessions a month. Now it's 1 filming session a month. You produce 14 A-rolls in just one session? हाँ 1 घंटे में. 1 घंटे में? हाँ 1 घंटे में 14-15. स्क्रिप्ट कैसे करता है फिर तू? मतलब what is your scripting schedule? Do you make highlights with your script? ना मैं पूरा A to Z स्क्रिप्ट रिटन होती है भाई ब्रो मेरे हर एक वीडियो. Word to word? हाँ. तू रटता है? I write every single word. रटता नहीं हूँ मैं. लैपटॉप ऐसे नीचे रखा रहता है. 2 लाइन याद करी 2 लाइन बोली, फिर 2 लाइन याद करी 2 लाइन बोली. एंड कभी लगा कि यार मोमेंट में कि यार यहाँ पे बी रोल बढ़िया लगेगा, सो मैं एडिट में फिल्म करते टाइम मैं बोलता हूँ अमन को कि अमन इसमें बी रोल रखना. मैं नीचे देख के बोल रहा हूँ, वहाँ देख के रीड कर लिया, फिर सामने देख लिया. श्योर. अच्छा आइडिया है. नाइस नाइस भाई. विद द स्क्रिप्टिंग अदर देन दिस व्हाट इज इन योर नोशन डॉक, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर? मेरे नोशन डॉक्स में हमेशा रेफरेंस रहता है. भाई नाक पे चीज़ें लगी हुई. हाँ. तो मेरे नोशन डॉक पे हमेशा रेफरेंस रहती है कि मैं अगर मेरे को सही में मॉडल करना है किसी का वीडियो, तो मैं आइडिएशन के टाइम पे लिंक रखता हूँ एंड आई डू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन कि मेरे को क्यों पसंद आया वीडियो ये, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट टू टेक आउट ऑफ इट. लेट्स से इफ आई वर टू टेक वन ऑफ योर वीडियोज एंड आई एम लाइक भाई अश्मित जैसा वीडियो बनाना है मेरे को, आई विल पुट योर लिंक, आई विल बी लाइक ओके लाइटिंग टिक, स्क्रिप्ट अच्छा लिखा था, हुक में ही सेट दिस वन थिंग दैट वाज रियली गुड, वैल्यू में उसने एक पॉइंट ऐसा रखा जहाँ पे मे बी रिटेंशन बढ़ गई इसकी वीडियो की, आई विल ब्रेक डाउन दोज थिंग्स एंड देन आई विल जस्ट लीव इट. उस तरीके से मैं हर वीडियो पे करता हूँ. एट दिस पॉइंट ऑफन टाइम्स आई डू नॉट नीड दैट बिग ऑफ अ ब्रेक डाउन, क्योंकि मेरी सारी जो स्क्रिप्ट्स है बहुत रियल टाइम में लिखी जाती हैं. आई डोंट प्री मेडिटेट ऑन द स्क्रिप्ट्स जो मैं पहले करता था. अभी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आई नो व्हाट काइंड ऑफ रियल टाइम का मतलब किस लेट्स सेंस से में? अभी मैं उतना ब्रेक डाउन पहले से करके नहीं रखता. पहले मैं एक एक चीज़ लिख के रखता था कि ऐसा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए, यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ ये बोलना है, श्योर. स्क्रिप्टिंग से पहले. अब नहीं ज़रूरत पड़ती है ना. तो अब मेरे पास अभी एट दिस टाइम इट विल बी द रेफरेंस वीडियो, इफ नॉट इट विल जस्ट बी द टॉपिक एंड इट विल बी द 2-3 पेन पॉइंट्स दैट आई हैव टू टॉक अबाउट. एंड देन आई एट दिस पॉइंट अगेन मार्केटर वाला अप्रोच आ गया है ना. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन आई राइट ऑडियंस पेन पॉइंट एंड देन व्हाट्स द एम विद दिस वीडियो. सो यू जैसे कुछ लोग ना एक तो पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ लोग तो पॉइंटर्स लिख लिया. ना मैं पॉइंटर नहीं लिखता, क्योंकि आई गो लॉन्ग फॉर्म अगर मैं पॉइंटर में जा रहा हूँ तो. अच्छा, तो उधर से व्हेन यू रिकॉर्ड लॉन्ग फॉर्म यू आर इनटू पॉइंटर्स. हाँ लॉन्ग फॉर्म में पॉइंटर्स रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इट्स एंड टू एंड स्क्रिप्ट. गॉट इट. तो वो जितना प्रिसाइज हो, क्योंकि 30 सेकंड्स ही है डिलीवरी के लिए, पर मेरे वीडियोस मेनली सारे 40-50-60 सेकंड्स के होते हैं. एंड दे परफॉर्म वेल एज वेल. गॉट इट. अगेन वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने का गेम अलग है. तो एक तो मैं स्क्रिप्ट का समझ गया मैं. हाँ. ठीक है, मैं समझ गया. इस पे भी आएंगे कि जो स्क्रिप्ट लिखने का गेम यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम और ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स भी कैसे चेंज होता है. बिफोर दैट व्हाट आई वाज आस्किंग इज कि यार इसी पे आगे मैं जो मैं भूल गया. स्क्रिप्ट. अच्छा पॉइंट था ये. स्क्रिप्ट क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस नोशन डॉक्स में हाँ मैं स्क्रिप्ट मैंने देख लिया. ठीक है, वहाँ पे अमन को प्रॉपर एक्सेस है. जब मैं नोशन डॉक खोलता हूँ सक्षम, क्या क्या चीज़ें मेरे को दिखती है कंटेंट वाले पार्ट में, पोस्टर ब्रांड एस्पेक्ट में? ओके सो देयर विल बी द वीडियो फॉर्मेट, देयर विल बी द इंटेंशन. तो डू यू हैव कंटेंट ब्रैकेट्स की? अच्छा मेरे पास ये बी हाँ रोल मैंने वाले वो सेलेक्ट वाले ऑप्शंस बना रखे हैं ठीक मोशन है. के कॉलम्स में. तो इट विल बी द एस्टिमेटेड अपलोड डेट, फिल्मिंग सेशन का डेट क्या है, एंड देन देयर विल बी द इंटेंट. 3 इंटेंट होते हैं कंटेंट के. यू ग्रो योर ब्रांड, यू बिल्ड अथॉरिटी और यू बिल्ड ऑथेंटिसिटी, है ना. नो लाइक एंड ट्रस्ट के पैरेलल से तीनों ये. अथॉरिटी कम्स फ्रॉम नीश, ऑथेंटिसिटी कम्स फ्रॉम स्टोरी टेलिंग और ग्रोथ कम्स फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑन द प्लेटफॉर्म. इन सबके ओवरलैप्स होते हैं. यू कुड डू ऑल 3 टुगेदर, यू कुड डू 2 at once. 2 at once इज द मोस्ट ऑप्टिमल. इसमें भी ब्रेक डाउन बाद में और दे सकता हूँ मैं. तो इट्स दोज एंड देन इट्स जस्ट द फॉर्मेट. लाइक आई सेड बी रोल वॉइस ओवर है या जो भी है वो प्री डिफाइंड होता है. उसके अलावा जस्ट द टॉपिक एंड जस्ट द स्क्रिप्ट. बी रोल्स प्री डिफाइंड होते हैं. हाँ बी रोल मेजॉरिटी एडिटर करता है सेलेक्ट. अमन करता है क्या करना है, एंड देन मैं अमन को फीडबैक देता हूँ कि मेरे को ये चीज़ है. इफ़ देयर इज एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट आई वांट व्हाइल आई एम स्क्रिप्टिंग द वीडियो, वो ही मैं लिखता हूँ बस वहाँ पे. तो समझ गया. जैसे नए बी रोल्स हो गए कुछ एक्सेट्रा वैसा, या फिर मेरे को लगता है कि यार मे बी आई डोंट हैव द एडिक्वेट बी रोल्स फॉर दिस वीडियो, तो आई विल बी लाइक अमन बता देना यहाँ पे क्या क्या करना है. एंड डू यू हैव सर्टेन दीज क्रिएटर्स आल्सो जिसको यू रेगुलरली मॉनिटर? ऐसा कुछ नहीं है अभी वो वाला पार्ट पूरा हट गया है ब्रो. आई जस्ट इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग इन टर्म्स ऑफ एवरी सिंगल आइडिया,
मैं थोड़े मैक्रो लेवल से देखता हर ब्रांड को कि फॉर एग्जांपल टॉम नॉस्की क्या कर रहा है ना? समझ गया ये लोग कि क्या एक कर रहे हैं? ओवरऑल क्या है इनका। चाहते क्या है, करना क्या चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आई हैव बेटर नंबर्स दैन टॉम नॉस्की ऑन माई अकाउंट, even though his account is like 3-4 times bigger than mine. But again, he's making 50 times the money, 100 times the money that I make. There must be something he's doing right. तो मेरे लिए right now it's not about the copywriting, because copywriting पे मैं personal level पे काम करता हूँ, consuming good content, maybe reading some books here and there, maybe थोड़ा copywriting पे podcast देख लिया, है ना? And then personal brand पे फिर it's about कि भाई करना क्या चाह रहा है ये, dissecting their brands. क्योंकि अब वो पहले जब मास वाला कर रहे थे तब था कि वायरल क्या जा रहा है उसको उठाओ। समझ गया। अभी मोस्ट ऑफ माई आइडियाज आर लाइक कंप्लीटली ओरिजिनल, किसी से भी रिसर्च नहीं होता है वो। श्योर। व्हाट आर सम ऑफ द क्रिएटर्स दैट यू फॉलो एज ऑफ नाउ डीपली? जैसे यू जस्ट मेंशन समबडी टॉम नॉस्की नहीं, बिफोर टॉम नॉस्की ऑफ द कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे, समबडी हु इज इनटू वो 900K जिसने स्केल करा है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट डू यू कंज्यूम इन जनरल? यूट्यूब वगैरह कंज्यूम करता है तो नहीं करता? यार मैं यूट्यूब करता हूँ, बट यूट्यूब इज मोस्टली एंटरटेनमेंट। आई वॉच फुटबॉल हाइलाइट्स, आई वॉच साइडमैन। सो वेयर डू यू लर्न फ्रॉम भाई? हाँ, वेयर डू यू लर्न? एग्जीक्यूशन। अच्छा, अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन का? बिकॉज जब लास्ट टाइम हमने बात की थी यू द लास्ट थिंग दैट आई एक्चुअली वॉज लर्निंग फ्रॉम वॉज टॉम नॉस्कीज कोहोर्ट। श्योर। आई वॉज इन हिज लास्ट कोहोर्ट, अभी तो नया चल रहा है, उससे पिछले वाले कोहोर्ट में मैं था। सो आई वॉज, and the surprising thing was 99% of the things he said I knew it already. It's just that gives you validation as well कि सही जा रहा some of the reframes were very helpful. तो मैंने last जो सीखा था that was from Tom Noski's course. Everything else is kind of, instead of looking at content, it's more कि भाई marketing में क्या चल रहा है, and then creating content in that way. तो अभी तो पता है there's no specific people that you follow or consume their content कि मेरे को अगर एजेंसी अभी इतने से इतना स्केल करना है, अगर 100K पे जाना है तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, एंड मे बी वॉचिंग पीपल लाइक दैट। सो लाइक बुक्स, डू यू रीड बुक्स? बहुत कम। बुक्स भी नहीं पढ़ रहा है? बुक्स बहुत ज़्यादा कम। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिबल पे बुक सुनता हूँ दिन की 10 मिनट जब मैं कॉफ़ी बना रहा होता हूँ। बट डू यू थिंक कि जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड मे बी वॉचिंग एलेक्स होजी, वॉचिंग दीज पीपल, एंड कभी कभी देख लिया वो बात अलग है, बट बीइंग रियली सीरियस अबाउट इट, ठीक है, एंड देन पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, उसमें बिकॉज यू आई थिंक हैव बिन ऑन द बोथ द एंड्स कि बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करा है और फिर चल रहा है सही, बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करा है और अब बिल्कुल भी कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। हैव यू सीन द डिफरेंस इन मे बी योर रेवेन्यू, मे बी द वे यू बिन थिंकिंग अबाउट थिंग्स? हैव यू सीन द डिफरेंस? एग्जीक्यूशन वाली साइड में यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आई सी दैट। या भाई मैंने भी देखा 6 बजे उठ के अगर तुम काम शुरू कर दो ना 10 बजे तक, अलग जोन होता है तुम्हारा। बस तुम उठो, ना ब्रश करना है ना कुछ करना है, मैं उठो बैठो काम करो। सुबह 10 बजे उठो तुमको लगता है इनविंसिबल। हाई दैट हैपेंस। तो वही बात है कि नो मॉर्निंग रूटीन इज गोइंग टू हेल्प यू, नो नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू कि मैं उठ के पहले आधे घंटे मेडिटेशन कर लूँ। एंड घंटा कुछ नहीं भाई, लाइफ में सबसे ज़्यादा मेडिटेशन 5 मिनट किया आज तक मैंने एक बार में। यू आर नॉट गुड एट मेडिटेशन वगैरह, वो सब नहीं करते आप? टाइम नहीं है। कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? लाइक हाउ डज योर डे लुक लाइक? Okay, so I have a very random predefined day. Sure. Random predefined day, that's a very contradictory statement. Like मेरा वीक इस तरीके से प्लान नहीं करता कि मंडे को एग्जैक्टली पता है क्या करना है। Obviously, जैसे अक्षत का I saw a video जिसमें he said कि I plan my week. I just said weekly goals. That's it. I do not plan the week. And how many goals do you set per week? 3-4 maybe. ठीक है, समझ गया। सारे अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। सो इफ वी गो डीप इनटू द शेड्यूल साइड ऑफ थिंग्स, मेरा पूरा पर्सनल शेड्यूल का गेम चेंज हो गया था आफ्टर आई वॉच दैट वन वीडियो फ्रॉम एलेक्स हरमोजी जो था, Which was? My System to Outwork Everyone. That was the name of his video. That video was around maker's block and manager's blocks. Yeah, I've seen that video. ठीक है, मैंने उसका पूरा ब्रेकडाउन मेरे न्यूज़लेटर में भी दिया था, and how I created a parallel of that. Alex is very intentional in terms of he will have days where he will not talk to anyone, and then he'll have days where he will only Just talk to everybody. people. हाँ. मेरा वो नहीं है, मैं half of days पे करता हूँ ये, because I need to take sales calls. पैसा आना क्योंकि जरूरी उसको नहीं है ना, he is not directly involved in sales. हाँ, लीला सारा उसका बिजनेस का बैकएंड संभाल लेती है, सो सेल्स पीपल हैं, सेल्स टीम है। हाँ, वही पैरेलल बनाना पड़ता है। सो आई सॉ दैट, एंड देन देयर इज दिस ब्रिलियंट बुक बाय क्रेग बैलेंटाइन, इट्स कॉल्ड द परफेक्ट डे फॉर्मूला एंड परफेक्ट वीक फॉर्मूला। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, बट देन द ओनली आइडिया आई टुक फ्रॉम इट वॉज
schedule your work around your personal life and not the other way around. Yeah, talk to me about this. This is a very important topic. Yes, तो मैंने ये पढ़ा था, but again this requires a certain level of Authority. over your life. If you are not earning well, तो तुम ये luxury earn नहीं कर सकते. सही बात. You need to be able to earn to an extent and plus have people जो काम संभाल पाए, where you can take breaks and it will not affect anything. So I'll give you an early example of this. When I was working in AOS Media, Israel की agency है, one of the biggest players in the entire Instagram space. Being their head of content, I was like the 5th guy in their core team, apart from 4 Israelis. Okay, उनकी हिब्रू में बातें चलती थी. I was there at all times. So that was the time when I moved to Pune and मैं martial arts में लग गया था ज़्यादा. So one thing was non-negotiable on a daily basis. It was कि ट्रेनिंग पे जाना है, मतलब जाना है. 5:30 बजे घर से निकलूंगा और 9 बजे तक नहीं आऊँगा काम पे. शाम की है ये बात. हाँ. If people right now see my schedule, I stop work at 5:30 and I get to work at 10. रोज. That's my gym break. 5 घंटे का Bro, gym मैं break. 3 घंटे जिम में होता हूँ. ओके, उसके अलावा 1 घंटा चिल करना, बहुत तेज गाने सुनता हूँ घर आके, नहा धो के चिल करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, फिर काम स्टार्ट करता हूँ. सोता कब है तू भाई? 2-3 बजे, और कब उठता है? 10-11. मतलब ऐसा सोने पे नहीं है कि सोने पे सैक्रिफाइस नहीं है. I sometimes take naps, two naps in the ये 8 घंटे के अलावा है. मे बी 8 घंटे के अलावा, मे बी उसके अलावा भी. तो यू डोंट फील गिल्टी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल्स. सो अगेन शेड्यूलिंग वर्क अराउंड पर्सनल लाइफ, उसका सबसे बड़ा क्या है कि आई हैव डिफाइंड नॉन नेगोशिएबल्स. मंडे से फ्राइडे 5:45 से लेके 8:30 तक आई एम नॉट एट ऑल अवेलेबल. 8:30 मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इफ आई हैव कॉल एट 9 देन आई हैव टू रश टू माई प्लेस बैक फ्रॉम द जिम. जिम मेरा बाइक राइड 2 मिनट की बाइक राइड है मेरे घर से जिम. ठीक है, मैं अगर पैदल भी गया हूँ इट्स 10 मिनट्स. तो वो मैंने डिफाइंड है, मेरे हर एक टीम मेंबर को मालूम है, मेरे हर एक क्लाइंट को मालूम है. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट AOS, वन ऑफ द डिस्प्यूट्स आई हैड ओवर देयर वाज आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्क एट अराउंड 9:30-10 AM and then I used to work till 5:30 and I used to complete my hours because my agreement was based on hours per week. So I was completing my hours and even going overboard after getting back from the gym. I used to still work. Instead of 8 hours, I used to clock in 9 or 10. But then I had an argument with their operations manager. He was like, Saksham, you should not be going to the gym and it looks like you're prioritizing your fitness over this. And I'm like, yes, I will. And I told the CEO of the company that if he says this to me once more, I will leave the company tomorrow. So be very aware, like do not ever tell me how I should spend my personal life. So I did that and then those guys never told me a single thing about me spending time at the gym. So that's me kind of taking authority. So I did that and then since then it became a habit. You will only see 2 types of pre-scheduled tasks in my calendar. First will be training. Every day that's a yellow block. I can show it here. I'll attach this. Camera में भी दिख जाएगा. So you will see कि every day there's a yellow block. ये कब करता है तू बैठ के? मतलब रोज ये सुबह सब बैठता है, रात ये में सब बैठता है? डिफाइंड है ब्रो, ये देख. So पूरा दिन खाली रहेगा. But apart from it, there will be yellow and purple. हाँ. Purple is deep work and then yellow is gym. अच्छा, ठीक है. That's it. अच्छा, तो डू यू प्री शेड्यूल योर कैलेंडर एवरी No. These are defined. ये till the end of time defined है ये. और क्या क्या है इसमें? पर्पल इंक्लूड्स डीप वर्क. Purple वाला it's maker's block. अच्छा, ओके. है ना. And then yellow is training, just martial arts. तो Monday to Friday. एंड व्हाट अबाउट द मैनेजर्स ब्लॉक? मैनेजर्स ब्लॉक में एक दिन पहले शेड्यूल करता हूँ. तो इट्स नेवर प्री शेड्यूल्ड. मेरा फोकस डीप वर्क शेड्यूल्ड होना चाहिए और मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है. व्हेन डू यू टेक द कॉल्स? मोस्टली रात की बात होती है. आफ्टरनून एंड नाइट टाइम. सो माई टीम एंड ऑल ऑफ माई, नॉट द क्लाइंट्स बिकॉज वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं होते हैं, बट माई टीम नोज की सक्षम से बात ही नहीं करनी है सुबह के पहले 4-5 घंटे. ही विल नेवर रिप्लाई. और मेरे को बात नहीं करनी किसी से सुबह उठते ही. द ओनली पर्सन आई टॉक टू व्हेन आई वेक अप इज माई मॉम. मैं घर पे कॉल करता हूँ आँख खुलते ही. आफ्टर दैट द फर्स्ट 4-5 hours आई एम जस्ट डूइंग डीप वर्क. अब ये वैसा नहीं है कि भाई मैं zen मोड में होता हूँ उठते ही आई जस्ट डू क्रिएटिव वर्क. ये वैसा नहीं है. इफ आई एम टायर्ड इवन आफ्टर वेकिंग अप, मैं कॉल्स उसी टाइम से चालू कर दूंगा लेना. फ्लेक्सिबल विद. हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे से नहीं होना डीप वर्क. So I will wait until night time.
कि मैं रात में जब ट्रेनिंग वगैरह करके आऊँगा, नींद ले रखी होगी, देन आई विल डू द डीप वर्क. Bro, how do you? हाँ, go ahead. अभी तो कुछ वही, बोल. तो दैट्स वेयर आई एटलीस्ट नो कि मेरी लाइफ में हर अगले 1-1.5 हफ्ते में क्या होना है. सो आई शेड्यूल पर्सनल इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी बैक इन पुणे ऑन ट्यूसडे. आज मंडे है, कल सुबह मैं घर पहुंचूंगा. मेरे को मालूम है मैं आज रात में नहीं सोने वाला, कल मैं शाम तक सोऊंगा. सो देयर विल बी नथिंग अंटिल टुमारो इवनिंग. रात को मेरे को 9:30 पे क्लाइंट कॉल करनी है, तो मैं जब तक उठ जाऊंगा, आई विल डू द क्लाइंट कॉल एंड देन आई विल स्लीप अगेन. वेडनेसडे से आई विल बी बैक ऑन शेड्यूल, बट आई नो वीकेंड पे मेरे को मुंबई जाना है फिर से. आई विल बी एट करण औजला's कॉन्सर्ट, है ना. दोस्तों के साथ में वो ऑलरेडी डिफाइंड है. अब मेरे को मालूम है कि भाई सैटरडे संडे गए उसमें, वो पूरा मैंने मेरे वर्क ब्लॉक हटा दिया वहाँ से. ये एक हफ्ता थोड़ा ऐसा ही है. हाँ. हाँ. देन नेक्स्ट मंथ आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक फॉर अबाउट 2.5 weeks फ्रॉम वर्क कम्प्लीटली. दीदी की Next शादी है. month. दीदी की शादी है. सो अब मेरा स्प्रिंट रहेगा पूरा कि अंटिल 4th-5th of January I have to get to a point where I have enough leads in the pipeline, I have enough content ready, and the team is capable to handle the work. I'm very confident with the agency because the team has shown sides where last time जब मैं घर गया था, मैंने 1 हफ्ते बिल्कुल काम नहीं किया. I was like, bro, किल करूँगा, घर पे जाके काम करूँगा. I went home, मैंने रात को मैसेज किया टीम को कि कुछ काम नहीं होना मेरे से 1 हफ्ते. ठीक है, सो यू गाइज हैंडल एवरीथिंग, जस्ट लेट मी नो सेल्स कॉल्स का बता दूंगा मैं तुम लोगों को. आई ओनली डिड दैट. आई टुक अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर अ वीक. वर्कड मे बी 1 hour in that week when I was at home. And yeah, तो उस तरीके से मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है. भाई लेकिन ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है एज एन एजेंसी होना कि आप 1.5 हफ्ते कुछ ना करो एंड थिंग्स आर स्टिल इनटू द प्लेस. ठीक है, वो बिल्ड करना, वो हाउ डू यू बिल्ड दैट? Okay, so this is very important, right? This year we had 2 ups and downs. Like agency grow किया गिरा, grow किया गिरा, अभी वापस grow करा. But the difference this time is quality clients, quality team, and raising the base level. What I mean is कि oftentimes agencies ये loop से नहीं निकल पाती है because their base level is bad. वो सस्ता काम करवाएंगे, वो सस्ते team members रखेंगे. They will not treat their work as projects. So this is one of the biggest reframes that I had in my agency, that if a client is with us on a retainer, number one, उनका agreement sign करते ही एक ticking timer चालू हो गया of when they will leave. And every single day is one day less उस timer में. So you need to be very careful कि मान लो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीना रिजल्ट नहीं आया, यू कैन बी ओके विद इट. सेकेंड मंथ नहीं आया, मे बी ओके. थर्ड मंथ में अलार्म्स बजने चाहिए क्योंकि यू नो कि फक आधा टाइम निकल चुका है विद दिस क्लाइंट. पहला रिफ्रेम ये कि दिस इज नॉट एन ऑनगोइंग सर्विस, दिस इज अ परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट. सो दिस इज नंबर 2. आई ट्रीट एवरी क्लाइंट एज अ प्रोजेक्ट नाउ एंड आई डिफाइन एवरी सिंगल प्रोजेक्ट कि अगर ये क्लाइंट आज आया है, doesn't matter if it's a big project or a smaller one, it's still a project and it's still the highest priority. समझ गया मैं. टाइमलाइन बड़ी है तो प्रोजेक्ट ही. हाँ, वो 1 हफ्ते का हो तो प्रोजेक्ट कंसीडर करेंगे, 6 महीने का तो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. वही it's a project. तो टीम को सबसे पहले रिफ्रेम करना कि तुम लोग मंडेन में जीते रहोगे, दैट विल बी द एंड ऑफ आवर सर्विस. टीम मेंबर्स एंड एजेंसी ओनर्स लिविंग इन दिस मंडेन लाइफस्टाइल, लेट्स से इफ इट्स अ कंटेंट एजेंसी और इफ इट्स अ एजेंसी जो एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दे रही है एंड दैट्स द डिलीवरेबल, तुम अगर उसी में रह गए तो देयर विल बी नथिंग एक्स्ट्रा यू कैन डू. इफ़ यू वांट टू एक्सेल एट एनी क्लाइंट प्रोजेक्ट, यू हैव टू गो डीप. अगर कोई क्लाइंट आ जाए कि ओके वी वांट 20 शॉर्ट फॉर्म एडिट्स, तुम वो कर दोगे एंड पीपल ऑफन थिंक कि वो ओवर डिलीवरी है, वेर इट्स नॉट. इट्स जस्ट यू डिड वॉट यू आर सपोज टू डू. एज एन एजेंसी तुम्हारा ग्रोथ होगा ही नहीं इफ यू आर नॉट टेकिंग द गोइंग द एक्स्ट्रा माइल. सो यू डिफाइन द क्लाइंट प्रोजेक्ट, यू आर लाइक ओके bare minimum is 20 videos a month. How do we get ahead? Okay, me as the founder, I will bear the charges. I will chuck in an extra 5 videos a month. Maybe I'll maybe give them 10 extra videos. So if अभी मेरा client को over deliver करने का तरीका क्या है? They expect us to make 30 videos, I give them 40 back every month. And I'm like, I will also do a consultation with you and I'll also help you develop your next project without asking for anything extra. Because I don't want to leave any loose ends from my side. हम जब काम खत्म करके बैठे हैं, if it's a win or it's a loss, you can't talk to us in terms of something that we did not do. Deliverables कभी भी वो रीजन नहीं होगा हमको छोड़ के जाने का. We will do the deliverables and extra. Okay. That's one of my main things. So once I start to do this, team का expectation change हो जाता है. And this is the one big shift. But how do you set expectations to your team?
क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रीजन होता है, आर दे ऑन सैलरी? Yes. सो इट्स Performance incentive. ओके I oftentimes give a 50% extra salary. भाई, लेकिन अब इसमें ये भी देखो, एज नेटफ्लिक्स का हाँ. सीईओ सेइंग इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी व्हाट ही डज विद हिज टीम. He says no performance incentives. performance But that has to be a start for what we are doing. श्योर. If you are making 2 lakhs a month ka revenue, you can't afford to have one team member that makes 1.5 lakh. हाँ, You need to have that team member make you an extra 2 lakh to be able to earn an extra 50,000. एटलीस्ट या So that's your stage. तुम पहुंचो 50 लाख 1 करोड़ तुम्हारे कमा रहे हो तुम कंपनी से. That's when you can have a team member where performance incentive do not matter. तुम उसको बेस सैलरी इतना ज़्यादा दे रहे हो. You need to have some margins जिससे you can keep the agency running. You need to have some money. एंड व्हाट डू यू थिंक आर दोस मार्जिन्स? कितना मार्जिन रहना चाहिए? Yeah, see, I'm not big about कि मेरे को इतना exact numbers चाहिए. I know that I need at least 50,000 rupees a month on software. Okay. I need around 4 to 5 lakh a month on salary. So let's suppose if you're doing a certain revenue, what percentage of the revenue has to be with you reoccurring ताकि तुम runway भी बना पाओ and ताकि तुम ये extra चीज़ों में invest कर पाओ? So if you are at around 50% as an agency owner, again, it's a run against the negative cash flow. Let's say this is the spendings that you have and this is the positive revenue. तुम लोग 2 लाख कमा रहे हो, तुम लोग 2 लाख कमा रहे हो एंड तुम स्पेंड कर रहे हो 1.5 लाख. सो यू हैव दिस स्मॉल ऑफ अ गैप. Sorry. अब तुम्हें ग्रो करना है, you will start spending an extra 1 lakh rupees. So you need that 1 lakh in your bank first. With that 1 lakh, you will maybe get an extra client in a month. But then तुम उसको और level up करने के लिए you will start going a lot deeper. So you need to define कि okay, what is that amount that we need जिससे I can scale that. If it's getting, let's say if it's getting 3 exceptional video editors / creative strategists etc. So you need to be like कि okay, अब अगले month से लेके अगले 6 महीने तक total I need to have about 5 lakh का balance in my account that will be just this negative cash flow जो मेरे को spend करना है on good people. I will use that money and then I will grow the agency. तो वो gap बाद में बढ़ने लगेगा as this improves. So depends on the stage that you are in. If you are in early stages, I would say only take enough salary to be able to bear your personal expenses. That's it, and everything else goes back into the company. एक तुमको एक शॉकिंग नंबर बताता. With the amount that I told you guys कि मेरा revenue कितना रह रहा है, I made about 60,000 rupees profit in November. That's insane, man. मतलब कुछ भी नहीं है ये. एक तरीके से with the revenue that is 60,000 is nothing. तो where do you spend इतना ज़्यादा? एक रिफंड, बड़ा रिफंड था, है ना. उसके अलावा बिगर सैलरी $2,000 का और $2,500 का रिफंड था बस वो. नहीं, $5,000 $5,000 का यार. तो एडजस्टिंग दैट, कोर्सेज, बेटर टीम, एक इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा, ECB वगैरह भी बना रहे थे तो उसमें भी कॉस्ट जाता. हाँ, ECB का कॉस्ट जाता है. एंड देन सैलरी हो गई, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए. दैट्स वेयर अगेन मेरा पर्सनल एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है. आफ्टर द सैलरी यू गेट द पर्सनल एक्सपेंस का भी अमाउंट उसमें कि सैलरी से यू? ये प्योर प्रॉफिट है. आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स, आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द कंपनी, आफ्टर सैलरी, आफ्टर टैक्सेस, अगर GST ECB से GST देना पड़ रहा है वो, है ना. एंड देन पर्सनल एक्सपेंसेस, ये वो वाला प्रॉफिट है जो जेब में गया है. ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम इट एवरीथिंग वाज स्पेंट. श्योर. गॉट इट. एंड इसकी वजह से अब दिसंबर में इतना कैश फ्लो है दैट आई विल बी सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 4 months. अब 4 महीने का रनवे प्रॉपर है. ग्रेट मैन, ग्रेट. व्हाट अभी यू सेड कि ना इस साल में स्पेशली इन 2024 2 बार ऐसे मौके आए हैं जिसमें यू हैव गॉन डाउन. ठीक है, डीप शिट्स में जाके 2-3K पर मंथ. इनसेन मैन. भाई फट जाती है उस वक्त आदमी की. ठीक है, बट एक तो उसमें भी उस स्पेस में भी जाएंगे कि वो डार्क स्पेस जो होता है एज ऑब्सेशन कोर्स टॉक्स अबाउट. ठीक है, बट उससे पहले कि उसके बाद वो उठ के आना, what are few of the things that you've changed? As you said कि clients का जो quality है वो change हुआ. ठीक है, apart from client quality and including client quality, then versus now में what is the difference that you see? It's again higher taste and better standards. Sure. It's better team members, it's better quality of production, it's better standard in terms of anything that we do. Over delivery. Over delivery. And it's working with good people.
वो वाला जो टाइम था ना व्हेन द एजेंसी वाज अप एंड डाउन, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्की क्लाइंट्स, अभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, मोर स्टेबल क्लाइंट्स. ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब क्यों फिर? तो ये पहले भी कर सकते थे, आज क्यों कर रहे हो? That's chasing money and this is chasing abundance. Maybe having smaller retainers upfront, but looking at a bigger project. यार एक्सप्लेन दैट टू मी. हाँ, Let's say पहले कितना क्या चार्ज करते? बिकॉज यू सेड कि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं बट ज़्यादा पैसा आ रहा था. if I'm charging 3K for a project जिसमें मैं अभी 2.5K चार्ज कर रहा हूँ, but that's a personal choice I made. 2.5K में now we'll have performance incentive, skin in the game, better delivery, better taste. We will make higher amount of money. Back then it was 3K flat for a claim that we did not 100% believe. कि हम कर सकते हैं. एंड वो इसलिए आया बिकॉज उससे पिछले साल वी डिड दैट. हमने वो क्लेम दिया एंड हमने वो क्लेम को ओवर डिलीवर भी कर वो दिया. फिगर आउट कर लिया कि कैसे करना हाँ. है. बट देन इन दीज केसेस वो वाली चीज़ें हुई जहाँ पे क्लाइंट्स के एंड से बहुत दिक्कतें आई एंड आई हैड टू टेक ऑल द ब्लेम ऑन माई एंड. रियलिटी चेक बहुत था मेरे लिए कि तुमने क्लाइंट को रिजल्ट ला के नहीं दिया, यू डिड एवरीथिंग ऑन योर एंड, क्लाइंट ने अपने एंड की चीज़ें नहीं रखी विच वर रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग में ब्लेम, लाइक एंड में तुम पे ब्लेम आ गया एंड यू हैड टू गिव इट ऑल बैक, प्लस यू हैड टू लूज आउट मनी एज वेल. ओके, वो चीज़ें रियलिटी चेक ऐसा देती है वेयर यू स्टार्ट सेइंग नो टू मोर पीपल. तो पहले मतलब क्या कर रहे थे? पहले छोटे प्रोजेक्ट्स होते थे, ज़्यादा पैसे मिलते थे. हाँ, अब आप कर रहे हो? लेट्स से इफ इट्स 3K फॉर अ स्टैंडर्ड डन फॉर यू सर्विस. फॉर हाउ लॉन्ग? 3 महीने? हाँ, 3 महीने का 3K पर मंथ, इट्स 9K टोटल. अभी वी विल चार्ज लेट्स से 2.25 और 2.5K, बट वी विल हैव 10% का रेव शेयर. सो दैट्स मी गोइंग डीप इनटू द सर्विस इन टर्म्स ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स. और उनके लिए भी ओके रहता है 10% का रेव शेयर, क्योंकि दोनों के लिए रिस्क है. ऊपर सो 10% तुम रेव शेयर हमको तभी दे रहे हो व्हेन वी मेक यू मोर देन $2,500. कंडीशन 25. $100 जैसा जो भी रिटेनर है उसके ऊपर बनाएंगे तो ही तुम रेव शेयर दोगे हमको, ओके, गॉट इट. वरना नहीं दोगे. हाँ. अब टेल मी व्हाट इज इट दैट यू ऑफर एज एन एजेंसी? मेट्रोल में क्या क्या ऑफर कर रहे हो? Okay, so right now we have two main wings. Firstly, it's plain personal branding. So we have people who do not expect any result. वो लोग बस बोलते हैं कि we need a step up in terms of our personal brand. We do not expect you to give me 50K followers in the next month. We have those type of clients now. Very abundant, very good to work with clients. Then we have the performance side where it's the personal brand plus its monetization. So those clients either have their communities or coaching or product at this point, or they will launch their product 2 months from now. So for them, it's like going a step deeper. So for them, we create their automations, email campaign बनाना, funnel design करना. मैं खुद DM sequences बनाता हूँ उनके VAs को ट्रेन करने के लिए. मैं बताता हूँ कि तुम लोग अपॉइंटमेंट कैसे सेट करोगे डील्स क्लोज करने के लिए. मैं उनके कैलेंडली के फॉर्म्स खुद बनाता हूँ कभी कभी. ओके, सो दैट्स देम मेकिंग मनी. हम स्टार्टिंग में एक कंटेंट एजेंसी थे, बट देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, दिस इज वन थिंग आई टोल्ड माई टीम कि तुम लोग खुद को रिफ्रेम कर लो. यू आर नॉट amateur content creators who are trying to learn personal branding. You are marketers who know how to make money out of personal brands. That's a very big reframe. है ना? तो अभी तक का था कि हम आपको कंटेंट वीडियो एडिट करके और ये सब देंगे. पहले अब का है, वो था. हाँ, पहले अब वो it's था. everything like that and everything else. So अब है कि this is a step up towards you making money out of it. हाँ. And it's not just us making money. This is us being owners and proud representatives of bigger projects. मेरे को वो मासी गेम नहीं खेलना ब्रो इंडिया में कि मैं इस बहुत बड़े कंपनी के फाउंडर के साथ में काम कर रहा हूँ. मे बी दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, आई डोंट नो. बट राइट नाउ फॉर मी, इफ आई एम एबल टू क्रैक दिस गेम दैट आई एम वर्किंग विद एन इन्फ्लुएंसर हु मेक्स like who has 50K followers and I'm able to make him 200K USD, that's a win for me. Because if he makes 200K USD, I make 10% of that. Crazy. Right. तो मेरे लिए पूरा अब ये गेम बन गया है कि आई वांट टू क्रिएट एक्सपर्ट पर्सनल ब्रांड्स, हेंस creating this big idea of being an expert creator. And your client persona is mostly influencers? No, these are business owners जो digital products बेच रहे हैं या फिर they have their offline businesses. तो डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर अभी शुरू करना चाहते हैं? दोनों. तो ये ढूंढना भी तो मुश्किल होता है क्योंकि इनबाउंड है. इनबाउंड आउटबाउंड दोनों है. तो ढूंढना तो मुश्किल होता है ना कि मैं नहीं करता. मैंने डिफाइन कर रखा है, I have people who do it. Sure.
मैं DMs में सिर्फ उन लोगों से बात करता हूँ जिन्होंने रिप्लाई किया है एंड दे आर लाइक ओके लेट्स गेट ऑन अ कॉल. I only talk to them, or if it's an inbound DM. Apart from it, every outbound is done by the team. आउटबाउंड में मतलब लाइक यू विल नॉट डिस्क्लोज योर स्ट्रैटेजी, आई गेट इट. हाँ. बट And मैं एक चीज बताऊँ, this is the same strategy we still use जो last podcast में बोली थी मैंने. अभी तक चल रहा है बिकॉज यू वर टू रिवील कि भाई मैं नहीं दिखाऊंगा वो चैट वाला. हाँ. वो अभी तक नहीं दिखाई है, बाहर नहीं आई, वो नहीं आएगी क्या बाहर? मैं बताता, तंजय ने एक्सपेरिमेंट रन किया था ऑफ अ डिफरेंट DM स्ट्रैटेजी, घंटा काम नहीं करी. भाई मैं अपने DM दिखाऊंगा एक, मेरे को बताना, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कि मैंने ये मेरे वाले DM पे वापस गया, वी हैव अपॉइंटमेंट्स फॉर नेक्स्ट वीक. सो भाई मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी. यू मेंशन कि अभी मैं जाऊंगा और फाड़ के इनबाउंड लीड्स आएंगे, ठीक है? आई वांट जस्ट स्टैक इन इनबाउंड लीड्स इनटू करेक्ट. टिल 5th of January. यार इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इनबाउंड लीड्स कितने आएंगे. वील डू एवरीथिंग फ्रॉम आवर एंड जो वो कर पाए. श्योर. और वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी टू गेट इन पाइपलाइन में इनबाउंड लीड्स Firstly, ज़्यादा हो जाए? Why सक्षम को और यूज करना टुवर्ड्स द एजेंसी. सो राइट नाउ आई विल स्टार्ट टू ऐड अ बिट ऑफ कॉल टू एक्शंस फॉर माय एजेंसी पेज कि इफ यू आर XYZ, माय एजेंसी पेज इज वेयर यू नीड टू बी. दैट्स इट. सॉफ्ट सेल. तो Second- दोनों पे अलग टाइप का कंटेंट जा रहा है. हाँ. मेरा फेस नहीं है एजेंसी के पेज पे. आई कंप्लीटली रीब्रांडेड द होल थिंग. मेरा सिर्फ एक केस स्टडी वाला वीडियो पिंड है उसमें अभी भी, जो मैं वापस से कैरोसेल में बना के हटा दूंगा वहाँ से. श्योर. तो एजेंसी पे क्या जा रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट फॉर द बिजनेस ओनर्स? यस, सो टारगेट ऑडियंस के लिए उन लोगों को अट्रैक्ट करना, उन लोगों को नर्चर करना, एंड देन गेटिंग पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी डू. And with Why Saksham, it's mostly your personal life and how you behave and मेरी audience. everything. Yeah, your audience. Crazy भाई. पहले क्या हो गया था, व्हेन हाउ सक्षम वाज एग्जिस्टिंग इट बिकेम अ डिफरेंट गेम मेंटली, क्योंकि अब मेरे को 2 पर्सनल ब्रांड मेंटेन करनी पड़ रही थी. आई वाज लाइक पर्सनल ब्रांड 2 नहीं होनी चाहिए, एक ही बहुत है मेरे लिए अभी के लिए. आई विल क्रिएट एन एजेंसी ब्रांड एंड आई विल टेल यू गाइस वन थिंग. ऑल्दो मैंने तेरे को बोला था फनल में पूरा नहीं बताऊंगा अभी. द फनल इज स्टिल बीइंग मेड. यू कैन सी द थिंग्स दैट आई एम डूइंग देयर. खतरनाक आउटपुट दे रही है वो चीज़ें. People have started to copy me already with their agencies. People who have bigger agencies than me, they are copying me now. Like मेरे same videos डाल रहे हैं अपने pages पे वो, जहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया edits का. Although I'm not gonna claim कि भाई वो वीडियो हमारे हैं, but that's the video that we made and they made after me. And we know that they see us. तो फिर लोग बता दो already- ना ओवरऑल क्या है पाइपलाइन. सो इट्स अगेन मार्केटिंग का अप्रोच रखना. लाइक आई सेड, वाई सक्षम पे मार्केटिंग का अप्रोच है. दिस इज अगेन ट्रीटिंग दिस फेसलेस एजेंसी पेज एज अ मार्केटिंग. कंटेंट को पूरा मार्केटिंग के एंगल से रखना. वी हैव क्लियरली डिफाइंड कि टॉप ऑफ द फनल हमारे लिए क्या है. वी हैव डेटा सेट्स कि कौन सा टॉप ऑफ द फनल कैसी ऑडियंस ला के दे रहा है. वी हैव क्लियरली डिफाइंड कि मिडल ऑफ द फनल में क्या है. बॉटम ऑफ द फनल अभी हमने ज़्यादा करना स्टार्ट भी नहीं किया है. एंड वी हैव ऑलरेडी gotten leads inbound. जस्ट टू गेट बैक टू द क्वेश्चन कि इनबाउंड के लिए व्हाट ऑल आर यू ट्राइंग टू डू, वो क्या क्या चीज़ें हैं? Firstly, client results. ठीक है. Existing clients को results लेके आओ. नहीं जैसे अभी कि 5 तारीख तक भर जाए हाँ, इनबाउंड तो में. हाँ projects defined है ना, we need to get results अगले 2 हफ्ते. श्योर. हाँ Asking for testimonials before New Year's, stacking more testimonials, and then agency page को scale करना, and then also स्केल करना एज इन फॉलोअर्स बढ़ाना इस पे. that getting inbound leads, clarifying the funnel ताकि जब मैं 2.5 हफ्ते नहीं हूँ इधर, क्योंकि eventually I want to build a different team for my agency page. ये एक creative strategist है, there are 2 editors, and then there's 1 copywriter. तो वो रहेगा, but I'm not sure if I can do it. So अभी मेरा personal goal ये रहेगा कि before I go back to my hometown, तब जाने से पहले I can at least have enough content जो 2.5 हफ्ता चल जाए. समझ गया. तो उससे इनबाउंड आ जाते हैं. व्हाट इज द एवरेज ऑफ इनबाउंड्स दैट यू गाइस आर गेटिंग? I mean, even if we get 2 great inbound leads a week, that's still 1 to 2 clients a month. That's What is enough. the close versus inbounds ratio? यार, I'll tell you, inbound मेरे को अब तक जितनी भी आई है ना, I think I've closed 80% of them. That's crazy, bro. That's insane numbers. हाँ, क्योंकि the biggest client that we have right now, he was inbound. The last 4 deals I got, 2 of those 4 were inbound. है ना. अभी 2 inbound और leads हैं जिनसे मेरे को जाके बात करनी है. वो रश कर रहे थे कॉल के लिए when I had my flight to catch in a few hours, but I was like कि next week बात करेंगे जब आना. ये ठीक है भाई. हाँ. इतना होना चाहिए क्या? अभी मैं बाहर हूँ. मैं दोपहर में लाइक जिम के लिए प्रिपेयर करा था कि बस अब जिम निकलना आधे घंटे में.
and the guy was like Netherlands की lead थी. He was like, bro, do you work with XYZ? मैंने कहा yes, but what kind? उसने अपना specification दिया. I was like, yeah, we can do it. XYZ थोड़ा define कर दे भाई थोड़ा. They were like a production agency themselves. Sure. अच्छा उनको क्या करवाना था? Don't know what they want yet. अच्छा ठीक है. भाई अभी with your agency, what are the deliverables look like? So it's a set amount of content pieces first. I try to cut my own margins deliberately because I want to over deliver. So ये कब तक चलेगा? I don't know. At least 1 साल और. ठीक है. If I can spend an extra 50,000 to 1 lakh rupees per month, but that gets me more case studies, I'm all fine with it. क्योंकि 6 महीने बाद में ये जो 6 लाख का 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, this will get me 10 clients a month Sure. in my agency. So it's all a good investment. तो deliverables पे क्या बोल रहे थे? हाँ. So it's 25 to 30 videos. We do everything else apart from filming. Like तुम film करो, हम direct कर देंगे filming. If needed, a team member of mine will be there on a call with you When you film. while you are filming. सब करवा देंगे, तुमको जो चाहिए तुम बोलो. फिल्म बस वैसा कंटेंट करके दो जो हम बोल रहे हैं. बट देन अगेन इट्स डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी दैट द क्लाइंट हैज़. अगर वो खुद एक अच्छे क्रिएटर हैं, दे माइट हैव अ प्रोडक्शन टीम, उनका खुद का वीडियोग्राफर है, द प्रोडक्शन फॉर देम लुक्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू क्लाइंट्स जो सिर्फ खुद के फ़ोन से फिल्म कर रहे हैं या खुद के कैमरा से कर रहे हैं. दैट्स डिफाइंड. देन ये वाला मेनली रहता है पर्सनल ब्रांड वालों के लिए. द बिगेस्ट अनटैप्ड मार्केट येट एजेंसीज के लिए इट्स मास्टरिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज. जितनी सेल्स इंस्टाग्राम स्टोरीज से आती है, यू हैव नो क्लू. पीपल मेक 100, 200 के 500 के मंथ विथ इंस्टाग्राम स्टोरीज. Talk to me about that. तो अगेन इट्स नर्चरिंग द राइट ऑडियंस. इफ आई टेक माय Private ओन stories एग्जांपल, और, हाँ. हाँ, नॉट जस्ट प्राइवेट स्टोरीज, तुम्हारी नॉर्मल भी, अबाउट 90% ऑफ सेल्स आई गेट आर फ्रॉम माई इंस्टाग्राम स्टोरीज. जो थोड़ा ब्रेकडाउन कर दे ECV भाई, की थोड़ा रहती तो है. ऑडियंस को दे दे. ECV की जो 90% सेल्स रहती है, मेजॉरिटी ऑडियंस. बट वो तो एज अ कोच यू हेल्पिंग. तो व्हाट इज योर ऑडियंस क्लाइंट का पर्सोना? वो किस टाइप के क्लाइंट्स होते हाँ, हैं? तो दीज आर फाउंडर्स प्लस एंटरप्रेन्योर्स जिनका खुद का डिजिटल प्रोडक्ट है, और दे आर सम सॉर्ट ऑफ अ कोच. ठीक है. तो फिर वहां से तो उनको सेल्स आना इज प्रीटी इजी बिकॉज एक साइड तो कोच का तो मैं समझ गया. कोच टीचिंग, कोच हाउ टू कोच, और वो उस पर आ जा रहा है, स्टोरीज वगैरह पे डाल रहे हो तो उससे इनबाउंड. फाउंडर्स के लिए वी डोंट डू सेल्स येट. ओके. सो अभी उनके लिए सिर्फ पर्सनल ब्रांड. फाउंडर्स के लिए इट्स कम्युनिटीज. कम्युनिटीज को भी तुम सेल सेम कंटेंट और कम्युनिटी भी मैनेज करते हो? Not yet, but we give everything that's needed. So that's what I told you until now. That's the personal brand side. But when we take a step forward, now we include Instagram stories as well. जैसे मैं खुद मेरे को आती है stories करनी. I told you the numbers जो मैंने खुद के लिए किया था. Bonkers भाई, bonkers. And those were the same things that I used to do myself. तो अभी मेरे लिए एक challenge ये है कि how can I teach my team members to do that? Second, Instagram stories. मैं बता रहा हूँ, हमारे जैसा स्टोरी गेम किसी का नहीं रहेगा इन अ मंथ 2 months फ्रॉम नाउ. दैट एंड देन नंबर 3 इट्स द मार्केटिंग. सो तंजय एंड आई वी डिसाइड द मार्केटिंग फनल. तो किसी का वेबिनार फनल बनवाना है, किसी के लिए लो टिकट कम्युनिटी टू हाई टिकट कम्युनिटी, और अ फ्री कम्युनिटी टू अ हाई टिकट कोचिंग, वो फनल बनवाना है. वी हेल्प डू इट. तो दैट्स वेयर द मार्केटिंग अप्रोच टू कॉन्टेंट कम्स इन, बिकॉज हमें ऑटोमेशन उस तरीके से डिसाइड करने हैं. वी इवन क्रिएट लीड मैग्नेट्स फॉर आवर क्लाइंट्स. तो अगर किसी क्लाइंट के लिए लीड मैग्नेट किसी कोर्स का बनाना है, वी हेल्प देम डू दैट. उनको वो कोर्स, उन्होंने एक फ्री कोर्स बनाया, उसको एडिट करवाना है, वी प्रोड्यूस इट एज वेल. हम वो ऑटोमेशन हैंडल करेंगे. वी विल इवन राइट द ईमेल कैंपेन्स फॉर यू टू प्रमोट इट, एंड देन आई विल राइट द DM सीक्वेंस विथ यू टू सेट द अपॉइंटमेंट्स इफ यू हैव अ VA और यू डू इट योर सेल्फ. एंड देन इज द मोनेटाइजेशन. सो गेट द सेल्स इन. आई विल नॉट बी ऑन द क्लोजिंग कॉल विथ यू, यू क्लोज योर सेल्फ. माई वर्क इज गेटिंग द लीड्स. यू गेट द लीड्स, then your expertise converts. तो फाउंडर्स के लिए नहीं कर रहे अभी नहीं, but फाउंडर्स के लिए तो- कंटेंट चल रहा है. Yeah, the biggest client we have that I told you, the founder, we will help him launch his book next year, and the high ticket community that he'll sell for like 8-10K. सर भाई, लेकिन बहुत टाइम ये होता है, जैसे यू सेड यू विल हेल्प हिम लॉन्च हिज बुक, तो बुक लॉन्च में यू हैव नो एक्सपर्टीज बट स्टिल ही इज ट्रस्टिंग यू. See, there are parallels. Digital product coaching sell करना very parallel है. Like, and you can easily learn. Book is still a product, right? तो ज़्यादा आसान है. तुम बेच रहे हो उस चीज़ को, फिजिकल या डिजिटल. डिजिटल बेच रहे हो, इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट. You put a lot of emphasis on testimonials. You have to get the testimonials in. Why do you say that, and what's the importance of that according to you? Goodwill.
if people speak goodwill for us, again ये थोड़ा spiritual side में I'm not sure कितने लोग relate करेंगे, but if I'm doing good deeds from my end, maybe helping out a team member's family, giving a refund when refund was never in the contract, getting testimonials for us, that's our client speaking goodwill of us. And again, जितने ज़्यादा टेस्टिमोनियल होंगे उतने ज़्यादा ट्रस्ट होगा. और भाई ये गुडविल पता है क्या, एज यू सेड, जब $2,000-3,000 पे होते ना, तब कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास जो लगेगा कि यार ये गुडविल की वजह से आया है, क्योंकि तुमको है जो आइडिया भी नहीं होता है कि ये आदमी होपलेस हो रहा होता है, रोज ही गिर के सोच रहा होता है कि साला ये नहीं चलेगा क्या, कहाँ से कहाँ आगे, मैं क्या कंटेंट आगे जाके बनाऊँ, हाउ डू आई बिकम स्ट्रॉन्ग एंड टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांड, एंड वी डू दिस एज एन एजेंसी व्हेन आई एम शिट, माय थिंग्स आर नॉट क्लिकिंग. ठीक है, उस समय जो गुडविल से एक इक्का दुक्का ऐसे क्लाइंट निकल के आते हैं और वो ऐसे आएंगे बस बातचीत में और वो क्लोज हो जाएंगे. हाँ, वहाँ पे कर्मा और गुडविल काम करता है. वही जो अभी मैंने लास्ट जो डील बताया था, जो मैंने अभी इनबाउंड क्लोज करी थी, वो काइंड ऑफ गुडविल की वजह से ही थी, इफ यू थिंक अबाउट इट. या एब्सोल्युटली. तो यू एज अ कंटेंट क्रिएटर वर्सेस एंड यू एज अ एजेंसी ओनर एंड मेट्रो मीडिया जैसे चल रही है, हाउ आर यू प्लानिंग टू पोजिशन इट इन 2025, और उसका क्या प्लान है इस नेक्स्ट ईयर का? So Metro Media House will continue scaling. My aim is to build a completely, not bulletproof, you can say, like कुछ भी bulletproof नहीं होता है इस चीज़ में, but it's creating a near bulletproof funnel जो consistent, if our agency funnel can give us Instagram पे inbound जो agency वाला funnel है, if that can give us 3 to 5 clients a month, ideal. Second thing is, अभी तक मैं ज़्यादा personal branding में था. We will open an editing only wing inside our agency again. Starting में होती थी, but I closed it off. But now I will open it again, purely an editing wing. And that's where over deliverable, like over delivery, वो क्या करेंगे? Is plain editing and repurposing. But that's where we'll stack LinkedIn repurposing, LinkedIn text and newsletters. जो इमान गाजी कर रहा था, the way he reached it from 100K followers to 3 million, वो वाला zone? ना वो fan pages वाला अभी नहीं, but fan pages वाला भी आता है, like वो भी crazy zone है भाई वो. हाँ, like that's SEO on steroids. That's like having 30 fan pages, सारे targeted niche है, और 305 कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं रोज ही. हाँ, so you have भाई like टेस्टिंग वाला फीचर, यू हैव सीन ट्रायल फीचर ऑन इंस्टाग्राम, क्रेजी भाई. मैं भी इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहा ब्रो, दैट्स जस्ट अगेन 2 reframes है. मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ उस चीज़ को लेके, बिकॉज मेरे लिए इट्स instilling more overthinking in the creator. यार लेकिन पता है इसमें मैंने एक चीज़ ट्राई करी, विच वॉज कि एक कंटेंट बना लो, एक कंटेंट पीस, उसके 3 फॉर्मेट 4 फॉर्मेट बना लो, ठीक है, वो स्क्वायर में, नीचे गेम प्ले वो, और उसको सिर्फ ट्रायल में चला दो. सेम हैविंग द टीम्स बैंडविड्थ वो बनानी पड़ेगी पहले उसमें. यार फॉर्मेट तो सेम ही रहता है. नॉट एवरीवन कैन डू इट, राइट? ये तो है ही, ऑब्वियसली यू नीड एडिटर्स फॉर दैट. एक एडिटर जो मेन करेगा, एक एडिटर जो फॉर्मेट्स करेगा, वो चीज़ एडिशनल पर्सनल. तो हाँ, लाइक मेट्रो मीडिया उसका वो वाला पार्ट. देन वंस वी क्रैक दिस बिकम्स अ completely different service for agencies. We will build your Instagram funnel for client acquisition. Okay, that's the aim with Metro Media House. With Y Saksham, it's again scaling. What would you do with, अच्छा ये वाला बोल रहे उसके बाद पूछो. हाँ, Y Saksham, it's scaling, getting to like let's say 250K followers, 300K maybe next year. I can get to a lot more, but मेरे को niche तरीके से grow करना, so this is the realistic amount, I'll say. No, now your focus is money. Not just कि money, उसी but तरीके से, niche. मतलब money is kind of a by product कि मेरे को इस space में impact देना है. Some of the heaviest hitters जो लोग को तुम जानते हो, millions followers वगैरह वाले, वो लोग मेरी community में आने का बोलते रहते हैं, and they have sent their team members inside. एक आध नाम बताओ. नहीं they are inside. People often ask me कि bro हमारे लिए भी है क्या, ये important है, हमको भी सीखना है वगैरह. तो again, I was a nobody 2 years ago. I was looking up to them, and now they want to learn stuff from my course. Good indication. So मैं भी इसमें egoistic नहीं हूँ, but I know कि I can get to a point where I can be one of the biggest players in this personal branding space in a few years. So money will be a byproduct of all of it. And अभी तक मेरे को थोड़े बहुत kind of उसका validation मिल चुका है कहीं पे, तो money वाला side भी crack हो जाता है. Crazy bro, crazy.
read this quote which said, "The lazy loses to the average loses to the focus, and the focus loses to the obsessed." ठीक है, this is something Alex Hormozi posted, I guess. तो you also talk about self education in general. Yes. कि कितना important है स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद भी तुमको सेल्फ एजुकेट करते रहना, ठीक है. What are your thoughts on that कि लोग सेल्फ एजुकेशन नहीं उतने उस लेवल पे करते हैं जिस लेवल पे करनी चाहिए? या मेरे हिसाब से लोगों को स्टैकिंग का इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं मालूम है. पीपल डू नॉट थिंक आफ्टर दे हैव रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन दैट दे नीड एनीथिंग एल्स. व्हाट आई मीन इज कि अगर कोई लेट्स से आज कोई MBA करके निकला है, उसका एज अ कंसल्टेंट कहीं पे जॉब है, बट दे वांट टू डू मोर, दे वांट टू बी मोर, बिकम अ बेटर स्पीकर, बिकम बेटर राइटर, learn more about marketing, maybe pick one thing that you want to be really good at. तुम हॉबीज बन जाओ किसी एक स्पोर्ट में, ठीक है. वो सब चीज़ें बहुत ऐड करती है तुम्हारी लाइफ में. यू आर जस्ट अ मोनोटोनस, जस्ट अनदर बोरिंग हसलर इफ ऑल यू डू इज वन थिंग एंड तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो उसमें. इफ यू कैन मेक प्रोग्रेस इन वन थिंग, यू आर रियली गुड एट इट. बट अगर तुम एक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भी प्रोग्रेस नहीं करो, देन इट शोज कि यू आर लैकिंग समथिंग. So you need to stack things, and you need to stack things by looking within yourself. If I were to say कि Saksham का एक future version क्या है, that future version owns several businesses. So I need to next learn कि how do I become a better leader and manager so I can manage several businesses at once. At this point, again, लोगों को लगता है कि कोर्स एक business नहीं, it's a complete business in itself. लोगों को लगता है कि कंटेंट Number speaks for itself, I can see that. आई मीन बेटा नंबर्स है ब्रो अभी वो लाइक बता अभी बेटा नंबर्स है ये. हाँ. तो जब पापा नंबर्स बनेंगे डांट पड़ जाएगी सबकी. तो वही ना, लाइक ग्रो करते रहना इस तरीके से कि दीज आर स्मॉल नंबर्स एंड देन व्हाट्स नीडेड नेक्स्ट. तो मेरे को मालूम है कि इफ आई वांट टू हैव सेवरल बिजनेसेस मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्टली आई नीड टू हैव बेटर फोकस, आई नीड टू मीट मोर पीपल, गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन रियल लाइफ, जो मैं ज़्यादा नहीं करता. मेरा जो प्रॉपर लास्ट ट्रिप था ना, इट वॉज व्हेन आई मेट यू, जब मैं जर्नी क्लब के लिए आया था. हाँ, मैं उसके बाद से किसी प्रॉपर ऐसे ट्रिप पे नहीं गया हूँ. मैं सिर्फ घर गया हूँ उसके बाद में 3-4 बार, दैट्स इट. You're pretty isolated as well. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हूँ, बट अगेन आई एम वेरी इंटेंशनल व्हेन आई गो समवेयर. तो डूइंग दैट, बिकमिंग अ बेटर क्रिएटर, सो आई हैव मोर ऑडियंस. एंड देन उन्हीं चीज़ों को काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्ट करके यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा इंसान है, दैट इफ माई करंट वर्जन हैज़ दोज 3-4-5 skills, और इफ आई बिकम बेटर एट दोज 3-4-5 things, आई विल बी एबल टू डू XYZ जो आगे जाके करना है. सो आगे जाके जब तुम स्टैक कर रहे हो तो चीज़ों को, यू नीड टू स्टैक बाय लुकिंग एट योर सेल्फ. अगेन, जब मैंने स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम वाली बात करी थी, इफ़ यूर अ कॉपी राइटर, स्टैकिंग होती है प्रेजेंटेशन से. But then stacking for you might look like, okay, I need to become comfortable at speaking at the camera first. उस तरीके की चीज़ें. So you look within yourself and you define कि भाई अगर मेरे इस वर्जन को ये 2-3 skills मिल गई, I will be very good. And you break down things that people who you look up to are good at. Again, no breakdown is bad. तुमको अगर लग रहा है कि यार ये बंदा स्पीकिंग में बहुत बढ़िया है, ये कहीं भी इवेंट में जाके बहुत बढ़िया पार्टनरशिप्स बना सकता है, आई नीड टू लर्न दैट. चेज दोज स्किल्स, एक चीज़ पे टिके मत रहो. ऑल्सो भाई 80% से 95% जाना ना किसी भी स्किल में बहुत मुश्किल होता है टू गो दैट डीप. बट उसी 80% के बाद दूसरा कोई स्किल 60% 70% सीख लेना ना, तुमको 80% 85% पे ले आता है एज अ पर्सन. ठीक है, तो द मल्टीपल स्किल्स यू स्टैक, वो 95% की जर्नी ना एज अ पर्सन बिकम्स रियली ईजी फॉर यू. बिकॉज फॉर यू एज वेल जिजित्सु आती है, मतलब योर पर्सनल ब्रांड्स इंक्लूड जिजित्सु विच मेक्स यू यूनिक. सो एक यूनिकनेस फैक्टर भी आपके अंदर आ जाता है बिकॉज यू नो सो मेनी थिंग्स and because you have stacked those skills. Like I give credit to Jiu-Jitsu a lot for helping me solve stuff in my agency and my brand. Sure. क्योंकि मैट पे जब पिट रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ चीज़ें बस दिमाग में आ जाती है, and that would never happen if I was not doing it. And एक चीज़ important बताऊँ क्या है, like you said, right, you will go from 80 to 85 if you stack 2-3 things instead of going from 80 to 85 in one thing. एक चीज़ जो बहुत important होती है ना, if you are at 85, you will learn the things that are required to get at 85. या तो तुम उस एक चीज़ में जाके डीप सीखो, या फिर as you are becoming better at 2-3 things side by side,
those 2-3 things and that combination, the lifestyle that it forces out of you, the work that it forces out of you, it will make you learn those things to get to 85. तुम पहुंचोगे वहां पे, तो रास्ता तुम्हारा अलग होगा बट तुम पहुंचोगे उधर ही. तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा तरीका क्या होना है. एंड इट्स नॉट जस्ट वर्क रिलेटेड स्किल्स. वही बात है ना कि 160 के अगर फॉलोअर्स पे तुम पहुंच गए हो, अगर तुमको उसको सस्टेन करना है तो यू विल हैव टू लर्न ऑल द स्किल्स दैट सक्षम नोस. हाँ, अगर तू आज और 2 more, महीने में like, पहुंच गया. मेरे जो बेसिक स्किल्स है जो मेरे को वहाँ पे रिटेन करके रखते हैं, यू नीड टू लर्न दोस. एंड आई नीड टू लर्न, इफ आई वर टू रिटेन माई ब्रांड एट 150K फॉलोअर्स, आई नो दैट. बट वंस आई ग्रो टू 200K, आई विल नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इस बंदे ने 200K से ऊपर कैसे ग्रोथ पकड़ के रखी है अपनी. तो डू यू एवर इंटेंशनली थिंक ऑफ कि 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं या फिर ये करना है? नॉट येट. कभी सोच I know कि within 5 years if I keep on growing, I will be there. you will be there at 1 million because the kind of niche that you're in वो थोड़ा सा मेरे को मेरा स्पेस चाहिए ब्रो. लाइक इन द इंटरनेट, टॉप इन द स्पेस वाला गेम है. मेरे को मेरे स्पेस में मेरी खुद की ओनरशिप चाहिए. लाइक इफ आई एम बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड, इफ आई एम रनिंग माई एजेंसी, मेरा एजेंसी का एंगल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कंटेंट एजेंसीज दैट यू विल सी. ठीक है, काफ़ी सारी कंटेंट एजेंसीज की सर्विस रुक जाती है जहाँ पे हमारा काम चालू होता है. दे स्टॉप एट एडिट्स. देयर होल पॉइंट इज वील डू गुड एडिट्स फॉर यू. हमारा ऐसा है कि हम एडिट तो करके देंगे. नो वन विल राइट, नो अदर एजेंसी विल राइट कॉपी लाइक वी डू. नो अदर एजेंसी विल मार्केट योर स्टफ लाइक वी डू. नो एजेंसी विल गिव यू स्टोरी सीक्वेंसेस लाइक वी डू. नो एजेंसी फाउंडर नोज DM क्लोजिंग लाइक आई डू. क्रेजी ब्रो. तो मैं वहाँ पे ओन करूँगा उसको. एंड दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट 3-4-5 years. इस पूरे 2024 में 2 बार ऐसा समय आया है दैट यू वर फक्ड अप मेंटली भी. दैट वाज वेरी फक्ड अप क्योंकि इतना ये रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता है. समबडी हु इज क्रैकिंग सो गुड और जो कर रहा है, एटलीस्ट ये हो जाता है ना कि लोग बाहर से जो देख रहे हैं दैट इज दोज पीपल आर सीइंग समथिंग डिफरेंट सक्षम, और तुम अंदर से कैसे हो रहे हो तुमको पता है. यू आर फाइटिंग विद दैट. ठीक है, व्हाट वाज इट लाइक एंड लाइक व्हाट वर यू फीलिंग? क्या चल रहा था उस वक्त? I think it might sound a bit surprising. कुछ डिफरेंस नहीं था. क्यों भाई ऐसा? मेरी लोगों की फट जाती है ना जब ऐसा ड्रॉप आता है. मेरी नहीं फटी थी. इवन दो आई वॉज बर्निंग मनी, इवन दो आई डिड नॉट हैव दैट मैनी क्लाइंट्स, इवन दो नथिंग वॉज वर्किंग, एजेंसी वगैरह वाला एजेंसी काम नहीं कर रही, पर्सनल ब्रांड में ग्रोथ नहीं हो रही. मैं जब लास्ट टाइम दिल्ली आया था जून में, आई लॉस्ट माई जुजुत्सु मैचेस, है ना. जुजुत्सु का जो मेरे पे मेंटल टोल था, वर्क नेवर हैड दैट. ठीक है, बट फॉर सम रीजन आई जस्ट न्यू कि आई जस्ट हैव टू बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग. I did not care. I'll say one thing, right? I've never been at a point where I'll say कि भाई मेरे बैंक में पैसा खत्म होने वाला था. Never been there. I've always kind of prioritized money in a way in which if everything goes south right now, I will have enough to survive for a year. अच्छा, 1 साल का रनवे है. पर्सनल रनवे, कंपनी रनवे कितना है? कंपनी रनवे में एटलीस्ट इतना कर लूंगा कि आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि 45 डेज में चेंज ले आऊंगा कंपनी में. That's great. Both of those times, this is the one thing that got me through it. Personally, I knew एक kind of unfair advantage मेरे पास में ये है कि my family is sorted financially. उनको पैसे नहीं भेजने हैं उनके साथ, ऐसा उनको कुछ नहीं भेजना है. I spend money because I want to do it. श्योर है ना. मैं पापा भी आए थे, पापा को 1 रुपये खर्च नहीं करने दिया था मैंने पूरे ट्रिप पे, है ना. मम्मी आती है, मम्मी कुछ शॉपिंग के लिए गई हुई, आई एम लाइक जेब वापस डालो पैसे अपने पर्स में, मैं पे कर रहा हूँ. So I do those things. I might buy stuff for them. Whom are you close to? हाँ, Whom are you close to? दोनों से. किसी बट से मम्मी से मैं ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि पापा काम पे रहते हैं, तो पापा से मैं वर्चुअली फिजिकली ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि पापा बिजी रहते हैं काफ़ी. आई एम वेरी क्लोज टू माई सिस्टर एज वेल. प्लस में मेरे थोड़े बहुत दो कजन्स हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. तो फैमिली वाइज आई हैव दैट बैकिंग कि डजेंट मैटर हाउ बैड थिंग्स गेट, आई विल ऑलवेज हैव पीपल हु विल बैक मी. मेरे को पापा हमेशा बोलते हैं, जब मैं पापा से स्टार्टिंग में आई यूज टू हाइड दीज थिंग्स फ्रॉम माई फैमिली कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, काम में ग्रोथ नहीं आ रही. बट देन वंस आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, जब पापा बोलते हैं ना कि तू चिंता मत कर, तू काम पे ध्यान दे, है ना, तेरे को कोई पैसे की दिक्कत होगी, तेरे को मैं दे दूंगा पैसे. जस्ट दोज वर्ड्स आर इनफ टू गेट मी थ्रू एवरीथिंग. कर तो मैं लूंगा ही. हाँ, वही कि मैं कर तो लूंगा ही. अब आपने बोल दिया है कि मेरे को आपकी टेंशन नहीं करनी है, आई हैव एवरीथिंग.
है ना, like touch wood, having a healthy family and having healthy relations with them, game changer. So that's why I never had any issues. I was down to my last, you can say, month and a half का runway, जब फर्स्ट बार फकअप हुआ था एजेंसी का. मेरे पास लास्ट 2 महीने का एक्सपेंस बाकी है, इंक्लूडिंग द एजेंसी. I would have ran out of cash completely. मेरे को मेरे पास जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, मेरे को वो सेल करने पड़ते 1-1.5 महीने का और रनवे बढ़ाने के लिए. तो वो पॉइंट की कभी नीड आई नहीं. ओके, सो सिंस देन जब तुम वो सोचने लगते हो ना तो चीज़ें हो जाती हैं सॉल्व. मैंने भी सोचा भाई कि लोन लेना पड़ेगा. भाई मेरा वो ऐसा है, लोन तो नहीं लूंगा, क्रिप्टो बेच दूंगा सारा, क्योंकि क्रिप्टो फालतू में रखा हुआ है ये 2021 से मेरे पास में. बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, बट आई हैव अ डिसेंट अमाउंट जिससे मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ चला सकता हूँ. 1 महीने का भी मेरा रनवे नहीं निकलेगा क्रिप्टो से अभी, तो वो वाली चीज़ है. बट दैट गॉट मी थ्रू इट द फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम में तो मेरे को लगा भी नहीं कि फकअप है वो. सेकेंड टाइम में इट वॉज अ चॉइस. तो सेकंड टाइम में तो यू सेड कि आई जस्ट वांट टॉक्सिक क्लाइंट्स आउट ऑफ द वे. हाँ, टॉक्सिक क्लाइंट्स वायरस की जैसे घुस जाते हैं कंपनी में, एंड दे स्प्रेड नथिंग बट बैड एनर्जी. What do you take care of as of now when you are getting the clients in? क्या frameworks रखता है कि clients में मैं देखूं So I look at the brand strategies at all times. मेरे को हमेशा मालूम होना चाहिए क्लाइंट का ब्रांड कहाँ जा रहा है. I often times create the brand strategy myself with the team. टीम को मालूम है कि they are not at a point where they can replace Saksham completely, but they are getting there. I will give them a year and people will be able to replace me soon in parts of the process. But right now, if it's videos को रिव्यू करना, कॉपी को रिव्यू करना, पूरा ब्रांड का स्ट्रैटेजी मंथ बाय मंथ बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो मैं डिफाइन करता हूँ. मैं हर मंथ एक कॉल करता हूँ जहाँ पे आई टेल द टीम कि ये प्रोजेक्ट है इस क्लाइंट का इस मंथ का, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो भाई तू सेल्स में भी ऑपरेशंस में भी दोनों में रहता है? ऑपरेशंस में एट दिस पॉइंट चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हैं, बिकॉज द कोर मेंबर्स आई हैव दे टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट नाउ द कोर पीपल आई हैव, वो जो नो रूल्स वाली बात है ना, दे आर द वंस हु आर डूइंग वर्क ऑफ मल्टीपल पीपल. दैट्स व्हाई इवन विदाउट देम आस्किंग फॉर इट आई गिव देम बिग बोनसेस. श्योर, गॉट इट. एंड मैं उनको आगे से बोलता हूँ, तुमको जिस पॉइंट पे लगे ना तुमको सैलरी में हाइक चाहिए, मेरे से बात करो. एंड प्रॉबेबली व्हेन यू विल रीच आउट टू मी आई विल बी लाइक कि तुम लोग पहले 1 महीने से डिजर्व करते हो वैसे भी है. गॉट इट. एंड आई एम वेरी वोकल विथ माई टीम. मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी वो कल्चर बना दिया है वेयर वन पर्सन विल बी लाइक कि सक्षम भैया आप इसको ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं रखते, मेरे को रखते हो, या फिर सक्षम यू टेक केयर ऑफ दिस वन थिंग बट यहाँ पे ध्यान नहीं देते. एंड लाइक कॉल मी आउट, लेट मी नो मैं कहाँ पे अच्छा नहीं कर रहा हूँ काम, एंड आई विल कॉल यू आउट. मैं बहुत वोकल हूँ मेरी टीम से, इसीलिए पीपल फील लाइक आई एम इंटिमिडेटिंग. ऐसा. गॉट इट. भाई टॉक टू मी अबाउट डिसिप्लिन एंड बोरिंग लाइफ. ठीक है, यू टॉक अबाउट दीज अ लॉट इन योर वीडियोज. Yeah, I enjoy it. हाँ कि पीपल थिंक कि एजेंसी लाइफ है शाइनी और ये इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, कितनी कूल है. ठीक कुछ है, नहीं है भाई. टॉक टू मी अबाउट दैट, द बोरिंग लाइफ दैट यू लीड. I meet friends properly about once a week. वो भी मेरे लिए अब बन गया है. There used to be times when I used to didn't go out with friends any week. Maybe मैं महीने में एक बार जाता था. Discipline defined होना चाहिए. For me, discipline is having a good sleep, not sacrificing on sleep. मैं उस ईगो में नहीं घुसता वेयर तुम लोग काफ़ी क्रिएटर्स को देखोगे जो अभी अपने इंडिया वाले स्पेस में भी हैं, क्या बोलेंगे कि यार आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई हेल्थ. दैट्स नेवर द इशू विथ मी. मेरे लिए ऐसा है कि आई विल add 1 day extra in terms of deadline for my work, but if that means that I have to go to my training today, मैं ट्रेनिंग जाऊँगा, I will sacrifice my work for it. मेरे लिए everything is about longevity. If I can stay healthy throughout the year and I'm not falling sick, I'm saving 2 months, जहाँ पे लोगों को साल में 2 बार जुकाम हो जाती है. ठीक है, if I still have that, I still have it once. नहीं होती है. मेरे को होती है, लाइक मेरी आवाज़ अभी बैठी हुई लग रही होगी. ओके, दैट्स व्हाई आई टेक मेड्स व्हेन नीडेड. मैं डॉक्टर्स की फैमिली से आता हूँ, सो इफ़ आई हैव इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ इश्यूज मेरी बॉडी पे, आई एम लाइक दीदी बताओ क्या लेना है, पापा बताओ क्या दवाई लेनी है ना, बिकॉज आई नीड इट सॉर्टेड. मेरे लिए डिसिप्लिन, इफ आई वर टू डिफाइन इट, इट्स टू इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ माई लाइफ एंड द लॉन्जेविटी ऑफ माई परफॉर्मेंस फिजिकली एंड मेंटली. मैं अगर फिजिकली ट्रेन कर पा रहा हूँ, लाइक इफ़ आई वर टू टेल यू गाइज मेरा कैसा फिटनेस का शेड्यूल रहता है,
I eat about 3.2k calories a day. Okay, मेरे साइज के नॉर्मल लोग 1500-1600 कैलोरीज पे होते हैं. I eat twice. ठीक है, मेरे को खाना खाने में 40 मिनट लगता है. तो फोन देख के खाता है क्या? नहीं, मैं सीरीज देखते हुए भी खाऊंगा तो भी मेरे को उतना टाइम लगेगा ब्रो. आई एम desensitized with my food. That's why I enjoy food when I'm outside. है ना. मेरा फिटनेस कोच है. He designed my diet मेरे ब्लड वर्क पे, है ना. उसने मेरा फिटनेस का रूटीन डिफाइन किया था. आई एम ट्रेनिंग 6 times a week jujutsu and I'm also training weights 3 to 4 times a week after jujutsu. अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरी खाऊंगा मैं श्रेड हो जाऊंगा, मेरा वेट कम होने लगता है. So to be able to get from let's say 61 kgs to right now 67.5 kgs, it took me 4 months. अच्छा वेट क्लास है. हाँ. ये वेट क्लास बहुत रोबोटिक तरीके से खाना खाना पड़ता है मेरे को. अभी मैं रोटी नहीं खा पाता. मेरे को रोटी सिर्फ नसीब होती है जब मैं घर जाता हूँ, क्योंकि मेरे डाइट में रोटी है ही नहीं. अच्छा. मेरे फिटनेस कोच रितेश ने वो रोटी हटा रखी है डाइट में से. आई एम ईटिंग अबाउट 800 grams ऑफ फ्रूट अ डे, है ना. उसके अलावा प्रोटीन, चावल, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन वगैरह सब कुछ. Shit, तो हाँ. ऑल ऑफ दैट, तो वो मेरे को हेल्प करता है इन स्टेइंग कंसिस्टेंट विथ माई वर्क, क्योंकि इवन आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 3 hours आई हैव एनर्जी टू वर्क फॉर 5 hours. Great bro. Thank you so much for doing this भाई. बैटरी खत्म हो रही है वरना और करते हैं. हाँ, वरना और करते हैं हम. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. और दिस कैन ऑलवेज कंटिन्यू भाई. फिर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. हम इसको हर एक साल 6 बाद महीने में फिर ले- ट्रेडिशन कर लूंगा. हाँ, हर 6 महीने में कर लेंगे. वैसे भी इतना चेंज कर रहा है, फिर 6 महीने बाद मेट्रो में कुछ और कर रही होगी. हाँ, पुणे तो मुंबई में प्लान कर रहा हूँ ऐसे जाने का. कब? यार एक आध महीने में मैं जाऊंगा और पॉडकास्ट वगैरह करने. आजा, पुणे आजा, या फिर मैं मुंबई आ जाऊंगा. डन है, प्लान करते हैं उस हिसाब से. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन. दिस वाज सक्षम फॉर यू एंड वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. बाय.